No, sir. नॉट येट? No, sir. ओके ओके, तो फिर ये वीक में आपका इंटरव्यू डायनामिक सेशन हो जाएगा. Yeah, sir, हम्म. maybe he just took a resume session, I guess. हाँ. And not even Naukri session. Naukri session conduct हुआ है क्या, guys? No, ma'am. नहीं मैम. No, ma'am. नहीं मैम, दो ही सेशन हुए अब तक. Yeah, Okay. so he basically takes, you know, 3 sessions. एक है resume, how to fill a resume. Then the second thing is he will take a session on how to make a good resume on Canva, resume related queries, and then a Naukri session. तो वो कुछ दोनों मिला के एक सेशन हो जाता है. और फिर इंटरव्यू डायनामिक्स अपने आप में अलग सेशन है. इंटरव्यू डायनामिक्स एंड देन वेलोसिटीज, होल डॉक्यूमेंट्स थिंग एंड एवरीथिंग, वो चीजें बता रहा हूँ. तो इससे के लिए एक सेशन होता है. तो कुल मिला के फिर इस तरह के 3 सेशन होते हैं. तो आपका एक सेशन हुआ, 2 सेशन होने के मुझे आइडिया आ गया. So I'll arrange his sessions also for you. I'll have a word with him. Maybe this week you will have both the sessions coming in from Amol sir. Okay, chalo, let's start now. Okay. Let me know if my voice is loud and clear and if my screen is visible to you guys. Hmm. Is the screen visible? Yes, sir. Yes. Okay. ठीक है. तो इधर करते GitHub. So we'll study about GitHub today. Okay. So in particular, let's try to understand what GitHub is, GitLab is, Bitbucket is, और उनका use क्यों करते हैं. Okay. Imagine you have been given a project, and then you're working on the project. You worked on the multiple files, and then you created the files, and basically you have all the files, completed. But still, if your manager has to access those files, he wants to know, he wants to see, what work you have done. So how would he do that? So you will say, sir, probably, because the files are on my system, so I will share the files, with him either on Microsoft Teams or on Slack or maybe through mail. I'll share the files with you, while files with him. Huh? Right. ऐसा करेंगे, है कि नहीं? है कि नहीं? क्योंकि गूगल ड्राइव तो होता नहीं यूज. जैसे हम वेलोसिटी में करते हैं कि गूगल ड्राइव पे हम सारे नोट्स अपलोड कर देते हैं, तो गूगल ड्राइव से कोई भी एक्सेस कर सकता है. तो कंपनी ऐसा गूगल ड्राइव यूज नहीं करती जिसपे आप अपलोड करो नोट्स और फिर वहां से दूसरे लोग भी एक्सेस करें और फिर उसको डिलीट भी करें दूसरे लोग आराम से. ऐसी चीजें कंपनी में नहीं होने देते. So just like we have Google Drive where we store our notes, and from where we give access to other people to download our notes and view our notes and edit our notes or whatever. In the same way, there's a common platform, there's a server जहाँ पे हम लोड करते हैं जो भी हमने काम किया. क्यों वो जरूरी है? क्योंकि see the thing is you are working on your local system. आपने लोकल सिस्टम पे फाइल रखी, कल आपका लोकल सिस्टम क्रैश हो गया, कल जाके जैसे अभी मेरा सिस्टम धोखा दे रहा, अगर कल जाके आपने ऑफिस पे काम करने को बैठे, आज क्लाइंट को रिपोर्ट सबमिट करने के, आज क्लाइंट को सारा काम दिखाना है और उसी दिन आपका लैपटॉप चालू ही नहीं हो रहा है, फिर बताओ अब ये सारी फाइल्स का क्या होगा जो लैपटॉप के अंदर है. अब इसका क्या है ना. और एक दिक्कत तो ये कि वन प्रॉब्लम इज दिस दैट you have these files stored on your system and the system is not responding, right? And another problem is how many files will you store on system, because there would be definitely some files would be very heavy, right? तो ये heavy files आप system पे रखोगे कितना? Because if the company laptops that's being provided to you, it has, it generally does not have
HDD हार्ड डिस्क उसका नहीं होता है, मतलब वो जो हम जो लैपटॉप्स लेते हैं और हम जो डेस्कटॉप्स बनाते हैं उसमें हम हार्ड ड्राइव डालते हैं ना, 1 GB 2 TB 1 TB 2 TB 4 TB तक के हार्ड ड्राइव डालते हैं। तो जो कॉर्पोरेट लैपटॉप्स होते हैं ना, जैसे लेटिट्यूड हो गए, देन ये इसकी सीरीज अलग अलग सीरीज जो भी कॉर्पोरेट सारे लैपटॉप्स होते हैं उसमें जनरली SSD होता है, HDD नहीं होता है, हार्ड डिस्क नहीं होता है, सॉफ्ट ड्राइव होती है। तो उससे क्या होता है ना कि यू ओनली हैव अ स्पेस ऑफ समवेयर अराउंड 500 GB, राइट? सो यू डोंट हैव मच स्पेस बेसिकली ऑन योर सिस्टम देन। तो दिक्कत क्या है अब इसमें, अब आप लोड करोगे भी तो कितना स्टोर करोगे पर्सनल सिस्टम पे, राइट? सो द होल स्टोरी घूम फिर के कहाँ पे आता है कि यू नीड सम अदर सिस्टम जहाँ पे आप स्टोर करो, लोग वहां से एक्सेस करें। जैसे हम गूगल ड्राइव करते हैं, गूगल ड्राइव से करते रहे, गूगल ड्राइव पे हम डेटा लोड कर देते हैं, फिर वहां से हम एक्सेस देते हैं। जैसे मैम ने आपको फिर लिंक बना के भेजी होगी, फिर वो लिंक थ्रू आप गूगल ड्राइव को आपको एक्सेस मिला होगा, फिर वहां से आप वो सारे असाइनमेंट्स और आपके सारी क्लास के नोट्स और वो सब आप डाउनलोड करते होंगे, राइट? राइट, इन दी सेम वे, yeah. So in the same way, basically, there is a dedicated system, there is a dedicated online server जहाँ पे आप ये जो भी काम करते हो, जैसे हर एक दिन का आपने कुछ काम किया तो उसको आप वहाँ पे लोड कर दो, वहाँ पे स्टोर कर दो, और फिर वहां से आपका मैनेजर जो एक्सेस कर सकते। तो व्हाट इज दैट प्लेटफॉर्म? दैट प्लेटफॉर्म इज GitHub, GitLab और Bitbucket. अब now every company can be using a different, platform. One could be using GitHub, another could be using GitLab, another company could be using Bitbucket, you know. But the whole idea is the commands, the Git commands for all of these are same. तीनों के लिए Git command जो है वो same है, सभी के है. Okay, so it doesn't matter if you just study, Git commands. You can work on GitHub, GitLab, Bitbucket, any of this. Okay, so let's go and quickly have eye on how does a GitHub look like, a GitLab look like, and a Git this look like, uh, Bitbucket look like. अच्छा, before that we need Git. हमें Git चाहिए. Git क्या होता है ना? Git is a software that you need on your system, using which you can actually connect with GitLab, GitHub or Bitbucket. Because Git क्या करेगा? Git is that software जो ना Git की commands को support करेगा, कि हम जो पास करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट में Git की कमांड्स रहेंगी, और कमांड प्रॉम्प्ट में Git की कमांड अदरवाइज सपोर्ट नहीं करेगी जब तक हमारे पास Git इंस्टॉल्ड नहीं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? Git इंस्टॉल करेंगे. So if you go and type Git, if you just go and type Git, you will be taken up to this site, right? And then the very first Git dot Git underscore sorry Git /scm.com ये साइट पे आओगे, आप Git को क्लिक करोगे, then you're taken up to Git site, official site, and then यहाँ पे आपका ऑप्शन से डाउनलोड. You go and hit a download button here, and then you have options. Do you want to download for Mac or Windows or Linux? So most of you would be having Windows, Windows based system. So then you can just go and say download for Windows, or say Windows here, or download for Windows. And as soon as you say download for Windows, the download starts here. Wait. Yeah. So it is a 30-board system. 32-bit system है, यहाँ पे 64-bit system है. अगर आपका 64-bit system है तो you can just say I need a 64-bit system version, and then you can download the 64 वाला version. और फिर यहाँ पे 47 MB का फाइल है, तो जब तक हम आगे चलेंगे ये डाउनलोड हो जाएगी. So all of you can just go ahead and hit download for Git. Okay, so once you have Git, let me check if I have already Git installed here. I have Git bash. I also have Git this thing. I also have Git installed, so I will not have any problem using Git commands. So what you need to do is, once you have this thing downloaded, then go open and then get it installed. You can say run as administrator or open. But जैसे आप उसको करोगे run as administrator, it will ask you, hey, do you want to allow this app to make changes on the device? You say yes, and then it will ask you for a couple of things, couple of more permission, and then just you say install, next, and finish. Nothing more, right? जिस तरह कोंडा इंस्टॉल किया, कोंडा इंस्टॉल करने में भी दिक्कत है, ये इंस्टॉल करने में कोई दिक्कत नहीं है. इट्स अ स्मॉल सॉफ्टवेयर बेसिकली. तो ऐसे इंस्टॉल एंड देन नेक्स्ट लाइक दैट. ठीक है.
quickly someone, download this software and then, install on your system and see how it's working, right? You may run a setup again, another system complete already exists setup. Yes, I don't want the setup to run. Okay, so once we are done with Git, now let's understand what GitHub is, right? So GitHub, if I open GitHub, if I open GitHub, I already have, GitHub login. I'm already logged on to GitHub. So what I need is, I need a volunteer. Who's going to volunteer? Someone who has already started downloading Git. I need a volunteer. Come on, quick. Rishikesh, yeah, Rishikesh, please. Yes. So, okay, Rishikesh, so please start sharing your screen. Okay. I'm hoping you're logged in from desktop, laptop, right? Yes, I guess. I have already downloaded the software. You downloaded Git, okay. But you do not have a GitHub account, right? No, Okay, sir. okay. So please share your screen now. Yes. Okay, okay. So you started installing. It only says install and then next, right? Yes, yes. Yes, sir. And once it gets completed, then you can hit finish. Okay. Yes. Meanwhile, you can open another tab. Is your system Windows or is it an Ubuntu system? No, sir, Windows. Okay. Okay. Open another window. Okay. And then you can search for GitHub. Okay. Okay. So the very first, interference UI that you see is basically this when you come to github.com. So now what company does is company creates, your company profile, GitHub profile for you. You do not need to have your personal account, but as of now, because we need access to GitHub, so we will create a personal account of our own. So maybe, Rishikesh, what you can do is you can go and sign up for this account. So there's a sign in and sign up option at the right corner top. So you can say sign up because you don't Sign have an in. account. No, but you don't Okay. have an account. So we need to sign up first. So say sign up and then it asks about some basic information, say your name and your mail ID and everything. It does not charge from you. It's going to be a very free account. There are both ways. There's a corporate account also for which it can charge, and then there is a personal account also, which is kind of free of cost for you, but then it has a storage limit. So yeah, you can give in your mail ID here, say Rishikesh007 bond@gmail.com. Continue. And then you can create a password that you can remember, and then you can also save the password. And that's okay. Password may be compromised, not a problem. So continue. Continue. Yes. Okay. Go ahead and create a strong password. Make sure you use @ kind of thing, and some numbers and some special characters and capital and small alphabets. That would be a good password to have. There is issue in creating a password. Use a capital letter, use a small letter, use a special character. Do not use space and use numbers. टेस्ट @1234 डाल दे। तेरा मेल का पासवर्ड है वो भी रख सकते Yes, हैं। yes. Enter user. Maybe you can just give in your name, and your surname also. Rishi is not available. The username Rishi is not available.
You can have underscore instead of space there. Okay. This would do. Or says username can only contain alphanumeric characters or single hyphens and cannot begin or end with hyphens. So everything looks good. Go and hit continue. No, so there is some error. Instead of underscore, type hyphen, no, minus sign. Yes. Okay, Yeah, this is a very yes. good. Would you like to receive product here? This is not required though. You can say yes, no, whatever you wish. That's okay. Continue. Verify your account. So there's a small game to play here. Start puzzle. What is Galaxy? Spiral Galaxy. Second. Okay. Where Rishikesh? You were so quick solving that. Create an account and then could have saved it. Okay, so now on your mail ID, maybe you can open your mail and on your mail ID, you can open your mail through your phone also. That's okay. And then you must have received a code. That's a minute, You sir. know, yeah. Just me. Student. Yes. Continue. And that's okay. You can just go and say continue. Continue. Okay, the free version. So now, here we have a corporate version and then a free version. So we continue for free. Yes. So here is your GitHub account created. This is your GitHub account, UI. Okay, so we are good. Thanks, Rishikesh. I just wanted to show कि यहाँ तक कैसे आते हैं. Yes, sir. Yes. Thank you, sir. Yeah. Yeah. Can I stop my screen? Yes. I'm sharing my screen. Okay, so now you can see that we are already on Git, and then there will be some UI like this. Okay, so I already have my repository. Some of my repositories created here. For you, there may not be any repository, and then you would create a new repository. And same as to GitHub, then you also have GitLab, right? And the GitLab content. शेयर किए क्या? हाँ, मैंने स्क्रीन शेयर किया. Not visible, sir. Not visible. मैंने स्क्रीन शेयर किया है. Let me pin that all. From different account. Yes, it's visible, sir. पिन अनपिन करो guys. नहीं सर, विजिबल नहीं है. No, sir. पिन करो सर के स्क्रीन पर पिन करो. Sir, हाँ. करो, visible है. ठीक है, अब दिख रही है. हाँ दिख रही है. Okay. तो हम क्या थे, हम आ गए थे यहाँ पे, ये यूएप पे आ गए. अभी तक अकाउंट वगैरह क्रिएट करके हम यहाँ पे आ गए. ओके, एंड देन द नेक्स्ट थिंग इज से जैसे हमने ये गिटहब अकाउंट किया, वैसे ही गिटलैब है. ये गिटलैब, यहाँ पे आओगे गेट फ्री ट्रायल, और उसी तरह से आप साइन इन करोगे या फिर रजिस्टर करोगे, उसी तरह से साइन इन करोगे. साइन अप करने के बाद आपका जैसा यहाँ पे खुला है वैसे यहाँ पे खुल जाए. And also then there is Bitbucket. Screen is not visible. Not visible. Pin karo, pin. So how can you do that is by going on people, and then in people you can see my name and then my presentation, you presentation, and then जो यहाँ पे presentation दिख रहा है उसको pin करो. People में जाके people जो messages जहाँ पे आप डालते हो, there's a chat box, and then beside the chat box then there is people, जहाँ पे 97 लिखा आ रहा होगा, उस पे क्लिक करो, वहां पे जाओ, मेरा नाम सर्च करो, प्रतिकन परिवार, उसको फिर पिन करो.
पिन करना बोले तो सिंबल होगा एक, साउंड के सिंबल के सामने में एक सिंबल होगा पिन वाला, Sir, उसे हिट visible. करो then it starts. Okay, so good. Okay, and then Bitbucket. So Bitbucket also is very similar. You come here and then you sign in and you sign up, get it free, and then you sign up and then you create an account और फिर वापस आप इसी तरह के UI पे आ जाओ. Okay. So now let's say that we have any of these accounts. So we say we have now GitHub account. So our GitHub account will typically look like this, right? And then what I can say, I can, if I can say that, I have a GitHub account. Say I have a company GitHub account. Okay. And I have worked on a couple of files, let me show you, let me show you some of the files which I have worked on. So समझ के चलिए कि जैसे I have C drive, I have D drive. और D drive में मैं एक फोल्डर है मेरा वर्कबेंच नाम का, इधर से ये वर्कबेंच, और ये वर्कबेंच नाम के फोल्डर में आई कीप ऑल माय डेटा. यहाँ पे मैं अपना सारा रिकॉर्ड रखता हूँ, सारी फाइल्स मैं यहाँ पे रखता हूँ. ठीक है. तो यहाँ पे मेरी काफी सारी फाइल्स हो सकती है, काफी सारे प्रोजेक्ट की फाइल्स हो सकती है, अलग अलग फोल्डर्स हो सकते हैं, अलग अलग फोल्डर्स में अलग अलग प्रोजेक्ट का काम जो भी कर रहा हूँ मैं वो सारी फाइल्स हो सकती है यहाँ पे. राइट. दिस इज हाउ आई वुड डू, है कि नहीं? दिस इज हाउ आई वुड डू. So what is next thing I need to do? I need to basically create a repository here. यहाँ पे मुझे एक रिपोजिटरी क्रिएट करनी पड़ेगी और वो रिपोजिटरी को किससे कनेक्ट करना पड़ेगा? ये फोल्डर में एक फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, उससे कनेक्ट करना पड़ेगा, है कि नहीं? ऐसे करना पड़ेगा ताकि ये फोल्डर की सारी फाइल्स मैं उधर भेजूं और उधर की सारी फाइल्स भी मैं इधर ले लूं, है कि नहीं? है कि नहीं? So now the next thing is what? Next thing is connecting my system with GitHub, है कि नहीं? Connecting my system with GitHub. So what do I do? Let me go and create a new file. So a new repository. और repository का नाम देंगे हम 5 मार्च, है ना? 5 मार्च. 5 and then March. Okay. And I want to say make it private. I don't want to make it public. Okay. And then forget about description. I don't want to give any description. And then say add a README file. So there would be an empty README file added. Okay. And then I say create repository. Create repository. So there is a repository created, and then there is only one file which is readme.md file. यहाँ पे कितनी फाइल्स है? एक ही फाइल है, readme.md फाइल है. ओके. और उसमें कुछ नहीं है, readme.md फाइल में भी सिर्फ 5 मार्च नाम का टाइटल दिया हुआ और कुछ भी नहीं इसमें. ठीक है. So now what I have already created a repository. Like what, अगर आपने ये पढ़ा है, क्या पढ़ा आपने? फाइल हैंडलिंग. तो फाइल हैंडलिंग में आप क्या करते हो? फोल्डर्स क्रिएट करते हो. आप फोल्डर्स को रिपोजिटरी भी कहते हो, है कि नहीं? है कि नहीं? Okay, so here on GitHub basically when I say I have created a repository, which means what? I have created a folder. Making sense? I have created a folder and now what I want is कि यहाँ ये फोल्डर में जो कुछ भी है यही का यही फोल्डर पूरा रिफ्लेक्ट होना चाहिए कहाँ पे? मेरे सिस्टम पे, और उसमें फिर मैं फाइल ऐड करते जाऊंगा, है कि नहीं? So what do I do? I say code and then code, I have this link. ये लिंक है मेरी यहाँ की रिपोजिटरी, यहाँ के फोल्डर का जो लिंक है वो ये, यहाँ के फोल्डर का वो लिंक है, एड्रेस ये है, इसको कॉपी कर लीजिए. इसे कॉपीड. ओके गुड. एंड देन फिर यहाँ पे आके मैं क्या करूंगा? यहाँ पे आके देन आई ओपन माय कमांड प्रॉम्प्ट विच इज दिस लोकेशन इज माय वर्कबेंच लोकेशन, जहाँ पे मैं फोल्डर क्रिएट करना चाहता हूँ. आप जिस लोकेशन पे फोल्डर क्रिएट करना चाहते हो उस लोकेशन पे चले जाइए और उस लोकेशन पे जाके वहां पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन. तो ऐसे CMD अंदर मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन. इस तरह से यहाँ पे the very first thing now that I need to do now is basically reflecting that folder, reflecting that repository on my system in this particular folder. कौन से folder के अंदर? workbench के अंदर मैं वो folder create करना चाहता हूँ. तो I say the very first command you will need is git clone. Okay, git clone or control V. What is control V? This is the link address. Right? Or I will say enter. और जैसे एंटर करूंगा he says cloning into 5 March and then it says इस तरह से सब कुछ हो गया और done. If it says done, which means what? Which means you will see a folder named 5 March here. You will see a repository named 5 March here. Right? सही है? Yes, Can sir. you repeat one? Yeah. What do you want me to repeat? तो इसमें क्या रिपीट करें From अभी? the देखें
from the Hmm. clone purpose, no? You have cloned that, no? हाँ, so ये आपको पता चल गया रिपोजिटरी कैसे क्रिएट की? Yes, yes, yes. There are multiple ways you can create a repository. You can go here and then say you repositories, and then फिर यहाँ पे आके you can say new repository here, right? और यहाँ पे नहीं तो आपको राइट हैंड साइड पे ऑप्शन आ रहा होगा न्यू रिपोजिटरी। तो जैसे आप न्यू हिट करते हो तो उसमें आपको नाम दो पूछता है रिपोजिटरी का, और सब देने के बाद आप कहाँ पे आ जाते हो, इस तरह की रिपोजिटरी आपके क्रिएट हो जाती है, जिसमें क्योंकि मैंने एक रेडमी फाइल ऐड करके रखा है इसीलिए वो रेडमी फाइल दिख रही है यहाँ पे, एक रेडमी फाइल का डिस्क्रिप्शन भी दिख रहा है, 5 मार्क्स इसका टाइटल है। ओके, फिर यहाँ पे आके मैंने क्या किया, ये कोड जो है, ये कोड पे मेरी ये लिंक का एड्रेस है, ये लिंक का एड्रेस, राइट? और ये लिंक का एड्रेस मैंने कॉपी कर लिया था, राइट? कॉपी कर लिया था। और फिर ये कॉपी करने के बाद मैंने क्या किया, ये कॉपी कर लेने के बाद फिर मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, जैसे CMD डाला, CMD और एंटर, यहाँ पे डालोगे CMD और एंटर दबाओगे, और जैसे CMD डाल के एंटर दबाओगे तो क्या आ जाएगा, आपका इस तरह का कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। या फिर आप आपका नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर सकते हो, आप यहाँ से CMD ओपन कर सकते हो, और ये ओपन करके आप क्या कर सकते हो, आप जा सकते हो कहाँ पे, जैसे अभी हम यूजर्स इस तरह की डायरेक्टरी आप कहते हैं चेंज डायरेक्टरी, और चेंज डायरेक्टरी CD कमांड होती है चेंज डायरेक्टरी के लिए, और हम आ जाएंगे यहाँ कहाँ पे, ये अपने D ड्राइव में, वर्क बेंच फोल्डर में, D ड्राइव में वर्क बेंच फोल्डर, तो आप CD D ड्राइव वर्क बेंच फोल्डर कर दो, तो ये क्या आ जाएगा, आप कौन से यहाँ पे आ गया, D CD change directory and then you say this folder, D ड्राइव में आ जाओ, और D ड्राइव में आप वर्क बेंच में आ जाओ, but it is not changing, which is very unusual. D colon sir, D Small colon. d colon. हम्म, Small d colon. मुझे लगा ही था स्मॉल D देना है नहीं, CD And guys, you all please note down the steps like जो भी सर बता रहे। नहीं, directly instead of a CD directly D colon दे दो सर। Only D colon. Only D colon, then you can access D drive. Small d colon sir. नहीं ये वर्क बेंच, मैम से स्मॉल D, D colon बस and next CD. D हाँ colon. हाँ हाँ We are in हाँ, C drive, first sir. thing is First of all, first thing is this, that we go to D drive. Yes. Maybe this thing also you should have discovered in Conda. In Conda we do this thing, पहले हम D drive पे जाते हैं, उसके बाद फिर then we basically go to this location, not this location exactly, but this CD. location. चलो anyway D drive पे आ गए तो we can now directly go to workbench. ऑलरेडी अच्छा वर्कबेंच पे तो हम आ चुके हैं, ये रहा वर्कबेंच पे हम आ चुके हैं, एंड देन यहाँ पे फिर आप कमांड प्रॉम्प्ट की वो सारी जो कमांड्स है वो दे सकते हो, ठीक है? तो हम D ड्राइव पे आ गए वर्कबेंच में, कैसे आए थे, पहले D कॉलन देखे और उसके बाद फिर CD देखे, जो पाथ था वो पाथ देखे, ठीक है? एनीवे सो नाउ एनीवे आई हैव अ कमांड प्रॉम्प्ट क्रिएटेड हियर, D ड्राइव पे वर्कबेंच पे, जहाँ पे हमने क्या किया, जहाँ पे हमने ये कमांड जो है वो रन की थी, विच कमांड इट इज, गिट क्लोन और रिपोजिटरी। So now what I should do, I will create a GitHub file. Here I will write down the notes and the commands. So what is the very first thing that we did? Git. We installed Git. And why did we use and install Git? We say Git helps, Git connects with GitHub account using Git commands. Okay, so basically Git, what does Git do? Git facilitates to run Git commands in command prompt, CMD prompt, right? ठीक है, clear है? And then where do we download this thing from? Where to download from? This place.
I'm not keeping for Windows. Maybe I say download यहाँ तक है ना. तो ये जो सेट है यहाँ से आप you can download, right? So this was all about Git. So once we download Git, install Git on your system, right? These are some prerequisites we need to have before using GitHub account. क्या कि हमें Git download होना चाहिए. Next thing is what? Next thing is we have where do we store the data? Storing data, and this can be done on GitHub, or can be done on GitLab, right? And what is the third one? GitLab and Git bucket. Gitbucket. ठीक है, इन तीनों पे search. Okay, so now what are the steps? What are the steps to connect our system with GitHub? The very first command that we have is say cloning repository, clone repository, and we clone repository using which command? Git clone. Git clone and the repository name, right? Repository name. So I can say, maybe there's an example which we have. What example we have? Git clone and then my repository name, which was this one, right? So this is how. So this is our first. This was our first step. Right? This was our first step. Git clone. और जैसे हमने clone कर लिया तो क्या हो गया? क्लोन कर लिया तो हमें मिल गया, हमें ये फोल्डर आ गया यहाँ पे, राइट? हमें यहाँ पे फोल्डर आ गया, हमारे यहाँ पे फोल्डर आ गया. Another thing what you could also have done is you say you go to, I don't know, this maybe, and then I have this Git here. Let me keep Git here. Okay. And then I don't need this also. इसका भी काम हो गया. You could just go to 5 March. You could have just gone to 5 March. और फिर आप यहाँ पे कोड पे जाके डाउनलोड जिप कर लेते. तो डाउनलोड जिप कर लेते तो क्या होता है, एक जिप फाइल क्रिएट हो जाती, जिप फाइल डाउनलोड हो जाती. इन जो सारी फाइल्स यहाँ पे है वो सारी फाइल्स की जिप फाइल डाउनलोड हो जाती, राइट? तो वो जिप फाइल डाउनलोड हो जाती है तो उससे क्या होता है कि उससे आपको जितनी भी फाइल्स यहाँ पे है वो सब एक फोल्डर के रूप में मिल जाएगा. और देन यू कैन हैव दैट फोल्डर, maybe you can say Control C and then you can go to this location, Control V, and then extract here, extract files. That's right. यहाँ पे नहीं रखते इसको, तो यहाँ से हटाते यहाँ पे डाल देते और यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट करते, एक्सट्रैक्ट here. So you will see this 5 March main, और ये 5 March main में एक readme नाम का फाइल है, राइट? तो इस तरह से आप क्या है फाइल्स डाउनलोड कर सकते. ओके, लेट्स कम टू आवर प्लेस. हम अभी वर्क बेंच पे, वी आर एट वर्क बेंच, और हमने यहाँ पे अपना जो फोल्डर है उसको कर लिया डाउनलोड. 5 March वाला जो फोल्डर है उसको डाउनलोड कर दिया, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाट? नेक्स्ट थिंग इज व्हाट इफ आई नीड टू ऐड सम फाइल्स, क्योंकि मैंने रिपोजिटरी तो क्रिएट कर लिया है, लेकिन रिपोजिटरी पे कुछ है क्या? कुछ कंटेंट है ही नहीं, है कि नहीं? पर मैंने कुछ काम करके रखा है. आई हैव डन सम वर्क and I have those files, all of those files on my system, and what do I want is basically I want to push those files from here to there. तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 5 मार्च नाम का जो फोल्डर है, ये 5 मार्च नाम के फोल्डर के अंदर कुछ फाइल्स डालूंगा, राइट? इसके अंदर कुछ फाइल डालूंगा और इसके अंदर फाइल्स डालने के बाद क्या करूंगा, फिर वहां से मैं फाइल्स पुश करूंगा गिटहब पे, राइट? सो लेट्स पुट सम फाइल्स हियर. से I have some files on my system in 12 Feb batch. और इस तरह की 3 फाइल्स है कुछ, राइट?
इस तरह कुछ 3 फाइल्स है, तो इन 3 फाइल्स को मैं कहता हूँ कंट्रोल सी, और यहाँ पे 5 मार्च वाले फोल्डर में मैंने कंट्रोल वी कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो गया, 3 फाइल्स आ गई। कौन सी? पाइथन वेरिएबल, स्ट्रिंग और फिर माइडिक्ट नाम की ये फाइल्स जो है ये आ गई। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. Okay, so what I need to do is, next thing is I need to add these files. I need to add this one. तो इसमें से 3 फाइल ये नई है और रीड में फाइल जो पुरानी फाइल है, राइट? और what I also do is maybe I also edit this readme file. So I do this, I say open this readme file with code. तो विजुअल स्टूडियो कोड में ये readme फाइल ओपन हो जाएगी। तो मे बी let me just open this folder itself. ये पूरा फोल्डर यहाँ पे ओपन कर, ये सारी फोल्डर्स की फाइल्स है, ये सारी फाइल्स यहाँ पे, राइट? तो मेरा 5 मार्च वाला फोल्डर है, और 5 मार्च वाले फोल्डर में ये मेरी तीनों चारों फाइल्स है और रेडमी वाली फाइल भी। ठीक है, ठीक है, pull that down a little. Okay, so I have this python.ipynb file, and then I have strings.ipynb file, and then this file, and then md file. और ये md फाइल जो readme.md फाइल, ये readme फाइल में कुछ भी नहीं है। So maybe what I would like to do is I just write something here. I can see 5th March, 5th March Python patch almost completed, right? Something like that. एंड देन आई व्हाट अभी तक हमने क्या किया, पहले ना यहाँ पे कुछ भी नहीं था, ये तो तीनों चीजें यू दिखाया अपडेट, क्योंकि अपलोड किया इन तीनों फाइल को रिसेंटली अपलोड किया, और इसके सामने आगे एम, ये एम तब तक नहीं था जब तक मैंने कुछ किया नहीं था। जब यहाँ पे मैंने लिखा तो यहाँ पे एम आ गया, विच मीन्स मॉडिफाइड। सो लेट मी गो एंड से सेव इट। सो ऐसे कंट्रोल एस मैंने सेव हो गया। अब रीडमी फाइल को मैंने मॉडिफाई भी कर दिया, 3 फाइल्स मैंने अपलोड भी कर दी। इसके अलावा भी मैं से आई विश टू क्रिएट वन अनदर फाइल विच इज new.py, एक पाइथन फाइल क्रिएट करते हैं। तो एक पाइथन फाइल क्रिएट होगी जिसमें आई से नथिंग बट से प्रिंट हेलो है, प्रिंट हेलो इस तरह से, और यहाँ पे प्रिंट हेलो लिख के आ गया, मैं रन भी कर लिया इसको। ओके, तो अब इसको भी, अब ये क्या है कि ये भी नई फाइल है new.py, ये भी अब ये भी नया अपडेट है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हमारे पास 4 फाइल्स है जिसको डालना है, और एक फाइल है जिसको हमने मॉडिफाई किया, उसको अपलोड करना है। तो इफ वी कम ऑन अवर लोकल सिस्टम, सो हमने देखेंगे readme.फाइल को हमने मॉडिफाई किया है, और एक न्यू नाम की एक .py फाइल है उसको क्रिएट किया है। न्यू नाम की एक py फाइल है उसको भी क्रिएट किया, राइट? इफ यू सी say rename, not rename, if you see the properties, you would be able to see it's a .py file. It's a .py file. ठीक है, पाइथन फाइल। सो नाउ व्हाट आई शुड डू कि ये जो भी इतनी सारी जो फाइल्स है, ये 4 फाइल्स मैंने ऐड की है, और एक रेडमी फाइल एक नई ये की है, चेंज किया। मैं इसको अभी पुश करूँ, कहाँ पे पुश करूँ? इसको मैं ऐड करूँ, कहाँ पे ऐड करूँ? ये जो भी फाइल्स मैंने यहाँ पे ऐड की है, क्या ये फाइल्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है क्या? हमारे गिट पे यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही क्या? नहीं, अभी भी नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? क्योंकि वहां पे मैंने रखा तो है फोल्डर के अंदर, लेकिन उसको यहाँ पे लाया नहीं है। तो 3 चीजों में यहाँ पे 3 स्टेप्स में वो यहाँ तक आएगी। तो 3 स्टेप्स कौन सी रहेगी? एक रहेगी ऐड, दूसरी रहेगी कमिट, तीसरी रहेगी पुश। और कुल मिला के पूरा गिट का जो खेल है वो इन्हीं 3 कमांड्स के गिट में, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश, ऐड कमिट पुश, ऐड कमिट पुश, यही। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे उसको रिफ्लेक्ट कराने का प्रयास करेंगे। तो क्या करेंगे, हम कहेंगे गिट ऐड। अब पहले सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, गिट स्टेटस चेक कर लेते हैं। एक होता है गिट स्टेटस कमांड। सो गिट स्टेटस से आपको क्या पता चल जाता है कि क्या क्या हुआ है। ऑफ कोर्स ये गिट स्टेटस पे कुछ नहीं क्योंकि अभी हम किस पे, डी वर्कबेंच फोल्डर पे। लेकिन हमें कहाँ पे होना चाहिए था? वो फोल्डर के अंदर होना चाहिए था। कौन से फोल्डर के अंदर? 5th मार्च वाले फोल्डर के अंदर होना चाहिए, राइट है कि नहीं? 5th मार्च वाले फोल्डर के अंदर होना चाहिए हमें। हम कहाँ पे है? हम है वर्कबेंच वाले फोल्डर में। तो ये फोल्डर में तो कुछ ऐड किया ही नहीं, ये फोल्डर में तो कुछ भी नहीं है।
हमने डाला है 5 मार्च के अंदर फोल्डर में, तो हमें आना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे आएंगे तो हम क्या करेंगे, या ये वाली डायरेक्टरी पे आ जाएंगे, ये वाली डायरेक्टरी पे आ जाएंगे, फिर से CD और ये दिस, और अब हम आ चुके 5 मार्च के अंदर, राइट। और 5 मार्च के अंदर फिर हम चेक करेंगे गिट स्टेटस। हमें स्टेटस बताओ, तो देखिए स्टेटस में अभी बहुत सारा ये हो क्या गया, इसने क्या करा, अनट्रैक्ड फाइल्स। अनट्रैक्ड फाइल्स बोले तो इफ यू सी इट्स अनट्रैक्ड फाइल, अनट्रैक्ड फाइल्स इज एज इन दीज आर न्यू फाइल्स। इसके पहले ये फाइल्स कभी ट्रैक ही नहीं की है, ना ये रिपोजिटरी पे दिख रही है, थी नहीं, ठीक है, तो ये अनट्रैक्ड है। तो ये 4 जो फाइल्स है ये नहीं है, नया फाइल्स है। कौन कौन से, new.py और इस तरह की XLSX फाइल्स और 2 IPYNB फाइल। और ये बोल रहे हैं कि और एक फाइल है जो कि जिसमें एड मॉडिफाई, जिसमें मॉडिफिकेशन हुआ है। कौन सी फाइल है वो, रीडमी वाली फाइल, इसमें मॉडिफिकेशन हो चुका है। तो कह रहा है कि एक फाइल हुए जो मॉडिफाइड हुई और 4 फाइलें जो अनट्रैक्ड है, इस तरह से। तो आप इन सारी फाइल को आप इन सारी फाइल को अभी आपको ऑपरेशन करना है इनके ऊपर। तो व्हाट ऑपरेशन वी हैव टू डू, से गिट ऐड। मैं कहता हूँ गिट ऐड, लेकिन चलो हमने पहले क्या किया, गिट स्टेटस। तो गिट स्टेटस कमांड के बारे में लिखते हैं थोड़ा सा। ओके, सो लेट्स से गिट स्टेटस, git status. So what will git status do? Or say check the status of your project. आप इससे क्या कर सकते हो, आप इससे स्टेटस चेक कर सकते हो कि आपकी प्रोजेक्ट में कौन सी फाइल्स आई है, कौन सी गई है, किस कमांड से, गिट स्टेटस कमांड से। इसका एग्जांपल क्या रहेगा, कुछ नहीं, बस अगर कुछ भी रहा, अगर कोई अनट्रैक्ड फाइल्स है तो कोई अनट्रैक्ड फाइल्स रहेगी, कुछ मॉडिफाइड फाइल्स रहेगी तो कुछ मॉडिफाइड फाइल्स रहेगी। इस तरह का आपको डेटा दिखेगा, लेकिन इस तरह से आपको कुछ कुछ चीजें दिखेगी, राइट। उसको मैं अलग ही सेल पे रख देता हूँ। ठीक है, क्लियर है। तो कौन कौन सा हो गया अभी हमारा, हो गया कि हमने 2 चीजें की अभी। कौन कौन सी की, एक क्लोन किया, और दूसरी बात हमने क्या किया, दूसरी बात हमने स्टेटस चेक किया कि क्या क्या फाइल्स है और क्या क्या फाइल मैंने मॉडिफाई की या ऐड की। अब तीसरी चीज क्या करेंगे हम, ऐड द फाइल्स, ऐड द फाइल्स, ऐड फाइल और फाइल्स व्हाटएवर, फाइल्स ऐड करेंगे। तो अब इसमें 2 चीजें हैं। इफ यू वांट टू से ऐड अ सिंगल फाइल, then you would have a command git add and the file name. Okay, example क्या रहेगा इसका, example रहेगा git add and then maybe you have some file new.py, एक ही फाइल आपको ऐड करनी है, तो इस तरह से। और एक दूसरा है कि अगर आपको मल्टीपल फाइल्स ऐड करनी, then you have command say git add --- all या फिर git add dot। तो इन दोनों से क्या होगा, इन दोनों से सारी फाइल्स ऐड हो जाएगी एट वंस, git add all फाइल्स, सारी फाइल्स ऐड हो जाएगी। तो पहली बार हम ये वाला स्टंट करेंगे, git add dot। तो git add and then I say dot या git add and then --- all, anything will do। दोनों भी करते तो क्या हो जाएगा, ये भी चारों फाइल जो नहीं है वो भी ऐड हो जाएगी और ये भी मॉडिफाइड फाइल जो है वो भी ऐड हो जाएगी, इस तरह से। तो हमने git ऐड कर दिया, तो ये फाइल्स ऐड हो चुकी है, ये फाइल जो है वो ऐड हो चुकी है। It says git add dot is not a git command. Okay, git add and then dot, ठीक है। तो जैसे git add space और dot जैसे हमने कर दिया, तो हमें क्या हो गया, हमें कुछ नहीं आ रहा है, मतलब बेसिकली जो है फाइल्स ऐड हो चुकी है, ठीक है। अभी तक हमने फाइल्स ऐड की है लेकिन उसको रिफ्लेक्ट नहीं किया, यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इट इज समथिंग लाइक इफ यू हैव टू गिव मनी टू वन ऑफ योर रिलेटिव। सबसे पहले आप क्या करोगे, आप कैश लोगे और वहां तक जाना पड़ेगा रिलेटिव के यहाँ तक, तो आप कैश लेके वहां तक गए, ठीक है। दूसरी चीज क्या करोगे, आप उसको कैश हाथ में दोगे, तो कमिट क्या हो गया, कमिट आपके हाथ से उसने अपने उसके हाथ में डाल दी। तीसरी चीज आपको उसको बोलोगे इसको रख लो, इसको रख लो। तो इसी तरह 3 चीजें यहाँ पे करनी पड़ेगी, गिट ऐड, गिट कमिट और गिट पुश। तो गिट ऐड होने के बाद क्या हो गया कि पैसे हम वहां तक लेके गए रिलेटिव के पास, ठीक है, अभी तक उसके हाथ में रखा नहीं। तो हम नेक्स्ट चीज क्या करेंगे, गिट कमिट /m, ये कमांड है,
मैसेज भी देना पड़ता है, फाइल्स एडेड, इस तरह से। ये है नेक्स्ट कमांड, ठीक है, गेट कमिट स्लैश। तो जैसे हम इसको रन करेंगे तो ये कहेगा 5 फाइल्स एडेड। तो कौन सी 5 फाइल्स होगी? एक फाइल जो है वो चेंज होगी, जिसमें क्या होगा कि अ, कौन सी फाइल अपनी जो ये वाली जो फाइल थी, ये पांच रीडमी डॉट वाली फाइल, उसमें जो अपडेट किया है वो अपडेट भी रिफ्लेक्ट हो गया और ये सारी फाइल्स ऐड भी हो गई, ऐसे कह रहे हैं, ठीक है। अगर इसके बाद एक बार एक स्टेटस चेक करें वापस, तो आपको दिखेगा ऑन मेन ब्रांच, आप मेन ब्रांच पे हो और आपको कमिट कुछ नहीं करना है क्योंकि आपने कमिट कर दिया है, लेकिन अब आपको पुश करना है, वर्किंग ट्री क्लीन है। तीसरी चीज आप करोगे गिट पुश। और जैसे आप करोगे गिट पुश, देखो टाइम लेगा और ये सारी फाइल जो ये 1-1 करके ऐड होते जाएगी। इनिमरेटिंग 9 डन, 100%, 9 में से 9 हो गया, ये हो गया, ये हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, सब कुछ हो गया। आप मेन ब्रांच पे हो और फाइल्स ऐड हो चुकी। अब अगर आप गिट स्टेटस चेक करोगे तो ये बोलेगा क्लीन है, कुछ है नहीं, ठीक है, एंड यू आर ऑन द मेन ब्रांच, ओरिजिन ब्रांच, और फाइल्स ऐड हो चुकी। चलो आके देखते हैं। अभी मैं मेन ब्रांच पे हूँ, आई एम एट मेन ब्रांच, ठीक है। ब्रांच भी क्या होता है, दैट ऑल्सो आई विल टेल यू। ब्रांच हो गया, लेकिन वहां से मैंने पुश तो कर दिया, लेकिन यहाँ रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? रिफ्रेश नहीं किया। जैसे ही मैंने रिफ्रेश कर दिया, ये देखो 1 2 ये 3 फाइल्स आ गई, ठीक है, और फिर ये सब भी आ गई। और अगर आप इसमें अब रीडमी वाली फाइल देखते हो, तो रीडमी वाली फाइल में आप देखोगे कि 5 मार्च के अंदर 5 मार्च पाइथन बैच ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, ये भी लिख के आ गया, राइट, मेकिंग सेंस। और न्यू डॉट पी वाई का आप देखना चाहोगे तो न्यू डॉट पी वाई में प्रिंट हेलो ये है, ये आ चुका है, ठीक। और फिर इस तरह से आप कोई भी फाइल देख सकते हो, स्ट्रिंग्स डॉट आई पी वाई फाइल देखोगे तो यहाँ पे स्ट्रिंग्स की जो पूरी फाइल है आई पी वाई फाइल वो आपको दिखने में आ जाएगी, ये हाई ऑल और इस तरह की स्ट्रिंग का सारा नोट्स है इसमें, ये फाइल है इस तरह से। So have you got an idea how do you add files using from command prompt? Now there is a simple way also, just like I told you, you can go and download zip और आप the folder zip पूरा folder वो ये कर सकते हो। उसी तरह यहाँ पे add files कर सकते हो, and then you can create new file here or upload files here. तो अगर आप यहाँ पे upload file कर लेते हो तो आप आपके डेस्कटॉप पे जाओगे, जैसे यहाँ से अगर आप जाना चाहते हो तो ड्रैग अ फाइल हियर और चूज फ्रॉम फाइल्स, एंड देन यू से चूज फ्रॉम फाइल्स, और यहाँ पे जो भी आपका फोल्डर है वो फोल्डर में जाके आप यू कैन सिलेक्ट मल्टीपल फाइल्स एंड देन से ओपन, एंड देन इट विल गेट एडेड हियर, ओके, एंड देन इट सेज कमिट। सो देन आप कमिट करना चाहोगे तो यहाँ पे कमिट के लिए आपको एक मैसेज देना पड़ेगा, जैसे हमने कमिट के लिए /m के बाद फाइल्स एडेड नाम का मैसेज दिया, और आप फिर आप कमिट चेंज कर दोगे, कमिट चेंजेस, तो फिर फाइल्स एडेड हो जाएगी इस तरह से, ठीक है, क्लियर है? इस तरह से so either way or other way, both ways you can do, but we want to learn the hardest way. ये तो बड़ा आसान तरीका है, क्या इसमें कुछ नहीं है, इसमें तो बस जैसे आप जाओगे कोई भी साइट पे और वहां पे बोलते हैं फाइल ऐड करो आपके सिस्टम से, तो आप फिर आपका सिस्टम चेक करते हो, मतलब यू चूज द फाइल्स और फिर आपके सिस्टम से वो फाइल आप यहाँ पे ड्रॉप कर लेते हो या फिर ड्रैग कर लेते हो या फिर अपलोड कर लेते हो, दिस इज सिंपल वे, राइट, बट यू नो वी शुड लर्न हाउ टू डू इट यूजिंग थ्रू कमांड प्रॉम्प्ट, राइट। Similarly, in Conda also you must have learned that Conda में भी कैसा है, Conda environment you can create it from Anaconda also. अब Anaconda नेविगेटर में भी वहाँ पे यूजर इंटरफेरेंस होता है और फिर वहाँ से भी आप बेसिकली आप क्या कर सकते हो, वहाँ से भी आप नया इन्वायरमेंट क्रिएट कर सकते हो, राइट। In the similar way basically here also you can do the things in the easy way, but still what do we do in company? We still work on Conda prompt, we still work on our command prompt, और command prompt से हम चीजें करते हैं इस तरह से, जैसे यहाँ पे environments है कि नहीं, और यहाँ पे आप जाके you can create a new environment also, है कि नहीं, तो इस तरह से आप यहाँ से भी कर सकते हो, but we want to do it where? We want to do it in command prompt, क्योंकि officially company में you should always use command prompt to basically do all of these things, ठीक है। So all you need to have is a little bit look around कि what things are there. वो बोला 4 मिनट पहले changes हो चुके हैं, 2 commit हुए हैं और ये सारी चीजें क्या है, फिर you go and discover all of these things. What is that pull request, sir? Yeah, we will come to that now. We'll come to that sometime. Okay. So this thing is clear so far. ये सारी चीजें clear है?
Yes, sir. Okay. Yes, So sir. and then what if we want to add one single file? जैसे यहाँ पे मैंने let me create a text file here. This text document, and I say my file. तो मेरी my file my file नाम की एक text file create हो चुकी है. Let me see what my what my git connect says now. Let's say git status. ये क्या करेगा? देखो एक my file not txt, my file dot txt नाम की एक फाइल जो है, ये एक नई फाइल जो untracked है. So why not we add this file also? Git add, and then I say my file dot txt, and I said my file dot txt and run. Okay, then I say git commit /m क्यों? मैसेज देने के लिए. और मैसेज एज इन मैं से my file और से one txt file added, इस तरह का मैसेज दिया. ऐसे रन, एंड देन चलो ठीक है, वन फाइल चेंज ऐड हो चुकी है, एंड देन आई से git push, राइट, git push एंड से एंटर. जैसे मैंने git push और एंटर कर लिया, वो फाइल यहाँ से वहां तक पुश हो चुकी है. All I need to do is go here and refresh it once. And if I refresh, you will see my file.txt has been added. Is there anything in the file? There is nothing in the file because I have not added anything. What if I make any changes in the file, my file.txt mein? If I make any changes, see my file.txt mein, if I make any changes, say this is great to learn about Git today, right? And I say enter, and then I just save it. ठीक है, Control S. मैंने इसको सेव कर लिया. तो my file basically now what I have, if I open this file, this is great to learn about Git today, right? But if I check, if I check where, if I check on Git repository, यहाँ पे मेरी file.txt में कोई चेंज होगा क्या? नहीं होगा. चाहे मैं इसको रिफ्रेश भी क्यों ना करूँ, कोई चेंज दिखेगा क्या? क्यों नहीं दिखेगा? क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि अभी तक मैंने git add, git push, git commit नहीं किया. तो आई से अगर मैं git status चेक करूँ तो मुझे क्या बोलेगा? मॉडिफाई हो चुकी है सर फाइल. एक फाइल है तो सही, लेकिन उसको मॉडिफाई की है. तो आप उसको ये करो फिर. तो वापस हम क्या करेंगे? git add, Control C, right, and then I say git commit, change is done, right. क्योंकि इसके पहले हमने जो मैसेज दिया था, वो मैसेज कहाँ पे दिखता है? वो मैसेज आप देखोगे, वो मैसेज यहाँ पे दिखता है. 5 मार्च वाला जो माई फाइल txt है ना, माई फाइल txt के सामने वन टेक्स्ट फाइल एडेड, ये हमने मैसेज दिया था. तो जो आप मैसेज देते हो ना, वो यहाँ पे आता है. तो जनरली नाउ यू कैन फिगर आउट आप किस तरह का मैसेज दोगे. आप इस तरह का मैसेज डालोगे कि दिस फाइल फाइल मॉडिफाइड ऑन दिस एंड दिस डेट, है कि नहीं? फाइल मॉडिफाइड ऑन दिस एंड दिस डेट. बिकॉज देखिए, आपने काफी सारी फाइल्स के ऊपर आप काम कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपने किस पर्टिकुलर डी, जैसे अगर इफ आई एम योर मैनेजर, हाउ वुड आई कम टू नो कि आपने रिसेंटली कौन सी फाइल मॉडिफाई की? आपने फाइल एडेड करके रख दिया, सब में सारी फाइल्स एडेड हो चुकी है, फाइन. बट देन हाउ वुड आई कम टू नो कि when is that change be done, or or if there is any specific or at this particular time you added a file, then you can mention the time and the date here in the message, right? You can also go and change the message. Also if you wish to do like that. Okay, where is our repository now? Let's come to 5 March repository. So we say one text file added, ये हमने मैसेज दिया था. अभी हम मैसेज क्या दे रहे हैं? अभी हम मैसेज दे रहे हैं कि git commit /m changes done. ये किसके लिए? क्योंकि हमने my file.txt फाइल को मॉडिफाई किया था. मॉडिफाई करने के बाद उसको ऐड किया. अब हम कमिट कर रहे हैं, और कमिट करने के बाद नेक्स्ट थिंग दैट वी विल डू इज पुश. ये हमने कमिट कर दिया, और देन वी से git push, और ये फाइल पुश हो चुकी है. अब ये जो फाइल पुश हो चुकी है वो हमें कहाँ पे दिखेगी? वो हमें my file.txt में. लेकिन my file.txt में अभी भी कुछ भी नहीं है. क्यों? क्योंकि अभी हमने इसको रिफ्रेश नहीं. हाँ है, दिस इज ग्रेट टू लर्न गिट टुडे, राइट, अबाउट गिट टुडे. तो इस तरह से क्या, चाहे आप एक फाइल ऐड करो या मल्टीपल फाइल्स ऐड करो, और जो भी आप मॉडिफाई करते हैं उसको भी आप यहाँ पे रिफ्लेक्ट करा सकते. मेकिंग सेंस? So Yes, what all sir. we have seen? We had seen git clone, git status, git add और सिंगल फाइल, या फिर git add
हाइफन ऑल और git add डॉट, और उसके बाद हमने क्या देखा, कमिट करना, commit changes. How do you commit changes? We commit changes using git commit, or we also give message /m, and then you can give your message here, right? इस तरह से, right? And what was the third? What was the last thing to do? Push. Push. And how do we push files? We use a git push, right? So far हमने यहाँ तक देखा, right? Git push यहाँ तक देखा. But this is only applicable when we are pushing to origin branch. No? Pushing on main branch, or which is also called as origin branch. Origin branch. तो मेन ब्रांच या ओरिजिन ब्रांच पे कर रहे हो तो सिर्फ git push कमांड से बात बन जाएगी इस तरह से. अब हम क्या करेंगे, अब हम लेट्स अंडरस्टैंड द फैक्ट नाउ, लेट्स अंडरस्टैंड समथिंग मोर इंटरेस्टिंग. देखिए आपने क्या किया है कि अभी हमने क्या किया कि अभी हमने एक फोल्डर क्रिएट किया, और वो फोल्डर पे हम वो प्रोजेक्ट की सारी फाइल जो अपलोड कर रहे हैं उसमें कुछ भी चेंजेस कर रहे हैं, कभी भी कोई फाइल अपलोड कर रहे हैं, डाउनलोड कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है. बट देन देयर इज अ प्रॉब्लम. व्हाट इज द प्रॉब्लम? कि यू विल नॉट बी द अलोन पर्सन वर्किंग ऑन वन प्रोजेक्ट, राइट? Yes, sir. यू विल नॉट द अलोन पर्सन वर्किंग ऑन वन प्रोजेक्ट. तो अगर आप भी इधर, आप कंटिन्यूअसली इधर चेंजेस कर रहे हैं और आपका कोई टीममेट है उसको भी अगर इसका एक्सेस आ गया, वो भी इधर चेंजेस कर रहा है, तो फिर सब हॉचपॉच हो जाएगा, है कि नहीं? सब हॉचपॉच हो जाएगा, राइट? राइट, मेकिंग सेंस? तो बेसिकली जो मेन होता है, मेन पे क्या होता है, मेन पे सिर्फ प्रोजेक्ट जब फाइनल हो रहा हो, प्रोडक्शन वाला जो प्रोजेक्ट हो वो वहां पे रहेगा. जो डेवलपमेंट वाला काम रहेगा वो मेन ब्रांच में नहीं रहेगा. डेवलपमेंट मतलब क्या, आप कुछ भी डेवलप कर रहे हैं, आप कुछ भी ऐड कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं, डिलीट कर रहे हैं, कुछ भी आप बेसिकली चेंजेस कर रहे हैं, मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, तो वो मेन ब्रांच पे नहीं रहना चाहिए, राइट? मेन ब्रांच पे भी फाइल प्रोजेक्ट रहेगा, मेन ब्रांच पे भी इस तरह की फाइल्स रहेगी, लेकिन वो कब होनी चाहिए? जो वो फाइल्स होनी चाहिए जो क्लाइंट को दिखानी है, वो फाइल्स होनी चाहिए जिसपे सॉफ्टवेयर बनाना है, वही फाइल्स यहाँ पे होनी चाहिए. आप जो भी काम कर रहे हो वो यहाँ पे नहीं होना चाहिए, वो है कि नहीं? आप सीधा प्रोजेक्ट में कुछ भी चेंजेस कर दोगे, you know, if we make any changes, you know, in the project, so and then अगर वो कुछ change, अगर कुछ you know that change has resulted in some malfunction, आपने पूरा सॉफ्टवेयर समझ के रखो, आपने प्रोजेक्ट बना के रखा है, the project is all working very good, these are all the files related to the project, and somehow you wanted to, you know, create some advanced thing in the project, and then you worked on one of the IPyNB file or .py file, और उसमें आपने कुछ तो चेंजेस कर दिए, यहीं पे कर दिए, और somehow you know वो कोड जो है वो गलत हो गया, और उसकी वजह से सारा जो प्रोग्राम, जो प्रोजेक्ट था, वो प्रोजेक्ट पूरा का पूरा प्रोजेक्ट रन नहीं हो रहा. दैट्स अ प्रॉब्लम नाउ, राइट? दैट्स अ प्रॉब्लम. So which means what? Which means we cannot, you know, we cannot work on the final files. Final files कौन सी? जिस पे हमारा प्रोडक्ट बन रहा है, जो प्रोडक्शन वाली फाइल्स है, उस पे हम वर्क नहीं करेंगे. हम किस पे वर्क करेंगे? हमारा सारा जो रॉ कंटेंट है, रफ मटेरियल है, वो अलग जगह पे होना चाहिए, उस पे हम कुछ भी करेंगे, और जब हमें लगता है कि वो बराबर काम कर रहा है, फिर हम उसको मर्ज कर देंगे इन सारी फाइल्स के साथ, रिप्लेस कर देंगे इन फाइल के साथ. मेकिंग सेंस? Yes, sir. है ना? तो फिर हमें क्या करना चाहिए? फिर यहाँ पे होती है उसके लिए फैसिलिटी. ये मेन ब्रांच जो है, ये मेन ब्रांच की तरह हम एक दूसरी ब्रांच भी बना सकते हैं, ठीक है? वी कैन ऐड द ब्रांच ऑल्सो, एंड वी कैन क्रिएट न्यू ब्रांचेस ऑल्सो. So how do we do that? Now we've all branches. If I show, it only says we only have one branch, which is main branch. Now from here also you can go and say add new branch. और ये मेन ब्रांच जो है, आपकी मेन ब्रांच जो है वो होती है डिफॉल्ट ब्रांच, उसके अंदर एक दूसरी ब्रांच क्रिएट हो जाएगी. मतलब क्या, आपके पास एक फोल्डर है जो कि मेन फोल्डर है, लेकिन ये मेन फोल्डर के अंदर एक दूसरा फोल्डर क्रिएट हो जाएगा जिसके अंदर आप अपना सारा रफ काम कर सकते हैं, और जब फाइनल लगेगा तो वो फोल्डर को, वो काम को वो फोल्डर से हटा के फिर फोल्डर के बाहर जो मेन फोल्डर है उसमें डाल दो. ऐसे कर सकते हैं. तो आप यहाँ से भी नया ब्रांच कर सकते हैं. देखो जो भी चीज हम कमांड से कर रहे हैं वो सारा चीज आप यूआई पे भी कर सकते हैं, लेकिन हमें वी हैव टू लर्न द हार्ड वे, तो हम करेंगे कमांड प्रॉम्प्ट से लेने से. तो लेट्स गो एंड सी हाउ डू वी डू इट
how do we create a new branch in using command prompt? So say create new branch. Now what we do, we say create new branch. And then we can create new branch using git checkout /b and the branch name. तो इस कमांड से क्या हो जाएगा, इस कमांड से हम एक नई ब्रांच क्रिएट कर लेंगे. वी कैन से git checkout /b and then maybe I'm doing some feature engineering work, so I will say feature engineering नाम की एक ब्रांच का मेरे मतलब, या फिर मैं I can create a branch of my name also, Pratik, and your colleague can create a branch of his name, Sachin and whatever like that, right? And say otherwise if I'm working on feature engineering, maybe I can also create a branch with the name feature engineering, like that I can do, right? So let's go and run this command now in command prompt and see what does it do. So I say git checkout /b feature engineering, enter. So it says switch to new branch feature engineering. मतलब क्या, एक नया ब्रांच क्रिएट हो चुका है और आप वो ब्रांच पे हो अभी. अगर आप अभी गिट स्टेटस चेक करते हो, टाइम टू टाइम वी शुड डू वन थिंग, ये स्टेटस चेक करो गिट स्टेटस. तो ये क्या बोल रहा है कि स्विच टू न्यू ब्रांच फ्यूचर, नहीं ये तो हो गया ऑन ब्रांच फीचर इंजीनियरिंग. आप कौन से ब्रांच पे हो सर? आप फीचर इंजीनियरिंग ब्रांच पे हो. पहले कौन से ब्रांच पे थे हम? इफ यू सी यहाँ पे ऑन ब्रांच मेन ब्रांच पे थे हम. लेकिन जब हमने ये जो नया ब्रांच क्रिएट किया उस पर चेकआउट कर लिया, तो जब भी when you do a check in the hotel and check out at the hotel, so check out as in you go away from there, right? तो आपने चेकआउट कहाँ पे कर लिया? आपने मेन से चेकआउट करके आप कहाँ पे चले गए? फीचर इंजीनियरिंग में चले गए. तो यहाँ पे आप फीचर इंजीनियरिंग ब्रांच पे हो, राइट? इन दिस वे. So there is also a command to check, how command to check the branches. What is the command to check branch? You can check the branch using git branch, जो कि मैंने पहले बैच को नहीं सिखाया है. Git branch, you can see git branch, enter, and it says feature engineering पे हो सर आप. देखो ग्रीन जहाँ पे आ रहा है, ग्रीन आ रहा है, स्टार आ रहा है, वो ब्रांच पे आप हो. So let me add this. How do you know on which branch you are? How do you come to know on which branch? Check on which branch you are. How do you check that? Using git branch. Git branch. Okay. So ये क्या हो गया? ये तो हो गया ना. अगर what if I wanted to switch to another branch? Switching switch branch. अगर मुझे ब्रांच में स्विच करना है, तो मुझे क्या करना चाहिए? I say git checkout और ब्रांच का नाम, right? So I can say git checkout and then I can say main. अगर मैंने main कह दिया तो क्या हो जाएगा? मैं main ब्रांच पे चला जाऊंगा. ठीक है, कंट्रोल सी. अगर मैंने यहाँ पे git checkout main कर दिया तो क्या हो जाएगा? स्विच टू मेन ब्रांच. अब आप गिट ब्रांच चेक कर लो तो आपको ग्रीन में क्या दिखेगा? ग्रीन में दिखेगा मेन, कि आप मेन ब्रांच पे इस तरह. अब मुझे वापस फीचर इंजीनियरिंग पे जाना है तो मैं क्या करूंगा? गिट चेकआउट फीचर इंजीनियरिंग और एंटर. इस तरह से. क्लियर है? तो अब अगर हम फोल्डर पे आए, ठीक है, और अब हम क्या करेंगे? जो मेन ब्रांच है, ठीक है, अभी तक मेन ब्रांच है, यहाँ पे आपको कोई दूसरी ब्रांच नहीं दिख रही. क्यों नहीं दिख रही है? अब इसके पीछे रीजन है, क्योंकि आपने ब्रांच क्रिएट किया है लेकिन उसमें कुछ भी डाला नहीं है, अपलोड नहीं किया है, which means what, you are not added, you are not committed, you are not pushed. तो जिसकी वजह से वो ब्रांच दिख नहीं रही. तो जब तक हम ऐड, कमिट और पुश नहीं करेंगे वो क्या हो जाएगा? वो ब्रांच जो है वो दिखेगी. राइट, मेकिंग सेंस? तो हम क्या करेंगे? हम ऐसा करेंगे कि
अब हम यहाँ पे कुछ फाइल्स ऐड करते हैं और कुछ फाइल्स ऐड करते हैं। तो 12 फेब की बैच से जरा बाहर आते हैं। 23 ड्राइव अक्टूबर नोट्स मशीन लर्निंग के डिसीजन ट्री में एक पीडीएफ है, एक सीएसवी फाइल है, एक पीएनजी फाइल है, राइट, और एक जेपीजी फाइल है, और एक चलो ये डायबिटीज वाला ये वाला फाइल ले लेते हैं, ओके, और एक फोल्डर भी। इतनी फाइल्स को लेंगे और यहाँ पे ऐड करें। यहाँ पे 4 फाइल्स को हमने ऐड कर 4 फाइल्स को हमने ऐड कर दिया, और एक फोल्डर भी बना लेते हैं मैं यहाँ पे, एक फोल्डर, और वो फोल्डर का नाम दे देंगे हम वर्क स्पेस, राइट, और ये वर्क स्पेस के अंदर भी एक फोल्डर रख सकते हैं हम फिर प्रोजेक्ट 2022, और ये प्रोजेक्ट 2022 नाम के फोल्डर में यहाँ पे मे बी वी कैन हैव सम फाइल एडेड हियर, मे बी एक पीपीटी रखते हैं यहाँ पे, है ना। लेट्स क्रिएट अ पीपीटी हियर, 2022 पीपीटी, और ये पीपीटी में कुछ ऐड भी कर देते हैं। लेट्स ऐड समथिंग इन द पीपीटी। Oh no, we can't do much because I do not have it activated. ठीक है, जो भी खाली पीपीटी हमारे पास है, ओके, खाली पीपीटी। तभी हमारे पास क्या है, हमने कौन कौन से नए फाइल्स यहाँ पे डाले, वर्क स्पेस डाले, डिसीजन ट्री, डायबिटीज, आईजी, ये 4 फाइल्स और ये एक फाइल, एक फोल्डर ये डाल दिया। तो हमें क्या करना चाहिए, अभी हम कहाँ पे, अभी कौन सी ब्रांच पे, अभी फीचर इंजीनियरिंग ब्रांच पे, स्विच टू फीचर इंजीनियरिंग ब्रांच। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट ऐड, और वो सारी फाइल्स ऐड करेंगे। कौन कौन सी, पहले गेट स्टेटस चेक कर लेते हैं। तो गेट स्टेटस अगर चेक करेंगे तो क्या बोल रहा है, डिसीजन ट्री, पीएनजी, आईजी, ये सारी, ये फाइल, एक फोल्डर और ये एक फाइल, इतनी फाइल्स जो है सर हमने ऐड नहीं की है। तो ये फाइल्स को हम ऐड करते हैं, ये फाइल्स को हम क्या करेंगे, ऐड करते हैं। तो इसे गेट ऐड, एक एक फाइल को करो, ठीक है, पहले इसको कर लो, ठीक है, फिर उसके बाद एक मिनट, गेट ऐड, और ये हमारी फाइल है। सर हम ब्रांच में फीचर इंजीनियरिंग है, एक्चुअली वो मेन में ऐड किया है। हम ब्रांच में है ना सर, जो फीचर इंजीनियरिंग का जो ब्रांच क्रिएट किया था, और आपने फाइल जो डाली है वो मेन इसमें डाल। नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बात तो उससे भी बन जाएगी फिर। गेट ब्रांच, और हम कौन से ब्रांच पे, गेट स्टेटस, और ये सारी फाइल्स है, ओके। तो अब हम क्या करते हैं, हम ऐसा करते हैं कि पहले गिट ऐड कर देते हैं, हाइफन ऑल, चलो सारी फाइल्स पहले ऐड करो, और ये सारी फाइल्स ऐड हो चुकी, इंक्लूडिंग दिस फाइल्स ऑल्सो, और ये जो पुरानी वाली सारी जो फाइल्स थी, इधर गए, ये नहीं, ये पुरानी वाली सारी फाइल्स है, ये वाली माइडिक्स वगैरह वो सब भी ऐड हो चुकी, ठीक है। और उसके बाद वी से गिट कमिट /m मेनी फाइल्स ऐड, ठीक है, ये हो गया, ये कमिट भी हो गया। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, हमें पुश करना है। अब हम क्या करेंगे, गिट पुश करेंगे, लेकिन गिट पुश कौन सी ब्रांच पे कर रहे हैं, फीचर इंजीनियरिंग ब्रांच पे। तो हमें एक चीज ध्यान पे रखनी, कौन सी, व्हेन वी आर पुशिंग टू अनदर ब्रांच, टू say pushing to any branch, no, in सब ब्रांच बोले तो मेन ब्रांच को छोड़ के जो भी ब्रांचेस है, अगर उन पे पुश कर रहे हैं तो व्हाट वी नीड टू डू, वी से गेट पुश ओरिजिन, और फिर ब्रांच का नाम,
right? So we can say git push origin and then we can say क्या है हमारा ब्रांच का नाम फीचर इंजीनियरिंग, राइट? तो ये कमांड अभी हम रन करेंगे git push origin और फीचर इंजीनियरिंग यहाँ पे रन करेंगे, रन, और क्या हो जाएगा वो सारी जो फाइल्स है वो सारी फाइल्स ऐड हो जाएगी। तो कहाँ पे ऐड होगी वो सारी फाइल्स, एक न्यू ब्रांच क्रिएट होगी। अब बोल रहा है वो देखो स्टार न्यू ब्रांच क्रिएट होगी फीचर इंजीनियरिंग, उसमें ये सारी फाइल्स ऐड हो जाएगी। अगर हम गिट स्टेटस चेक करेंगे तो बोलेगा नथिंग टू क्लीन, नथिंग टू कमिट, एवरीथिंग फ्री क्लीन, एवरीथिंग फ्री क्लीन। अब हम जाएंगे और गिटहब पे चेक करेंगे। अभी भी हमको क्या दिख रहा है, मेन ही दिख रहा है और कुछ तो नहीं दिख रहा है, लेकिन लेट मी रिफ्रेश दैट and now you can see your main branch is in see you can say feature engineering has recent pushes less than a minute ago, और यहाँ पे मेन के बाद आपको यहाँ पे फीचर इंजीनियरिंग दिख रहा है, ठीक है? तो अभी आप मेन ब्रांच पे हो तो मेन ब्रांच पे आपको यही फाइल्स दिख रही है, लेकिन फीचर इंजीनियरिंग पे आपके पास काफी सारी फाइल्स है। इफ यू स्विच टू फीचर इंजीनियरिंग then you have so many files in feature engineering, so many files are added, there is a folder also which is added, workspace नाम का फोल्डर है। इसके अंदर क्या है, पीपीटी है, इस तरह से पीपीटी जो हमने पीपीटी डाल कर रखी थी वो। तो ये किसके अंदर है, प्रोजेक्ट 2022 नाम के फोल्डर में, जिसपे हम अगर वर्कस्पेस में जाएंगे तो फिर वर्कस्पेस में एक प्रोजेक्ट 2022 नाम का फोल्डर। और 5 मार्च में फीचर इंजीनियरिंग ब्रांच पे हमारे पास क्या है, हमारे पास ये है, ये फोल्डर है, और ये फोल्डर के अंदर वर्कस्पेस है, वर्कस्पेस के अंदर फिर प्रोजेक्ट है, और प्रोजेक्ट के अंदर क्या है, प्रोजेक्ट के अंदर फिर पीपीटी, इस तरह से, ठीक है? तो इस तरह से हमने क्या किया, इस तरह से हमने ये सारी फाइल जो है नई फाइल्स को ऐड की, ठीक है? इस तरह की सारी नई फाइल्स ऐड की। तो now there is one thing which is significant to see here. We have so many files here because we are on which branch? Let me pull it little down, make it little small, and show it to you here. अभी हम कौन सी ब्रांच पे, फीचर ऑन ब्रांच फीचर इंजीनियरिंग। तो फीचर इंजीनियरिंग पे ये सारी ब्रांच, ये दिख रही फाइल्स है, ठीक है? अगर आप कहते हैं गेट चेकआउट और कौन सी ब्रांच, मेन, है ना, फिर चेकआउट और मेन ब्रांच। अगर आप मेन ब्रांच पे जाते हो तो तुरंत मेन ब्रांच पे आ गए। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे देख रहे हो आप 5 ही फाइल्स दिख रही। इट इज द सेम फोल्डर, बट द एक्सेस इज चेंजिंग नाउ, बिकॉज यही फोल्डर पे गिट क्या कर रहा है, वो आपके ब्रांच चेंज कर। अब इफ आई से अगेन गिट चेकआउट एंड देन मे बी फीचर इंजीनियरिंग, फीचर, अगर मैं इसको क्लिक करूं तो क्या हो जाएगा, अब आप देखना इसमें कम फाइल्स है, लेकिन जैसे मैं इसे एंटर करूंगा यहाँ पे बड़ी फाइल्स है, ये सारी फाइल्स आ गई फोल्डर पे। क्यों? क्योंकि अभी ब्रांच चेंज हो गई। समझ में आ रहा है आपको? समझ में आ रहा है? तो जब आप यहाँ पे जब आप ब्रांच चेंज करोगे तो यहाँ पे वो फाइल जो है वो सारी जो दिखेगी वो चेंज हो जाएगी, राइट? तो अभी क्या है, अभी आपने क्या किया है, अभी आपने कुछ नया फाइल्स चेंज किया, राइट? नया फाइल्स अपने ऐड किया है, और आप क्या करते हो कि आप कहते हो कि मेरे को और भी कुछ मॉडिफिकेशन करना है, मुझे रीडमी जो फाइल है, इसमें रीडमी फाइल में मुझे और कुछ ऐड करना है। तो आप यहाँ पे गए, आपने यहाँ पे से एडिट एंड देन यू नो आपने यहाँ पे और कुछ फाइल्स ऐड की, बोल रहे हो आपकी 6 March Python batch almost completed. It was a great journey, so much to learn, है ना? और इस तरह से, और आप क्या कर लेते हो, इसको सेव कर लेते हो, कंट्रोल एस, ना, एंड देन यस इट हैज टू बी कमिटेड, राइट? इसको कमिट भी तो करना पड़ेगा, तो कमिट का एक मैसेज देते थे, कमिट चेंजेस, कुछ भी मैसेज दे सकते हो आप, लेकिन एंड देन इट इज सेविंग, और फिर ये क्या हो गया, ये यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे आ चुका है बोले तो क्या हो गया, अब यहाँ पे आ गया है, लेकिन ये क्या है, ये कहाँ पे आया है, ये 5 मार्च पे आ चुका है। तो अभी तक हमने क्या किया, रेडमी नाम की फाइल जो है उसको चेंज किया और बहुत सारी फाइल्स ऐड की, एंड नाउ वी आर श्योर कि हाँ ये सारा जो मैंने चेंज किया है इसको आपको मेन जो प्रोजेक्ट है, फाइनल जो प्रोजेक्ट है उस पर रिफ्लेक्ट कराना है, बोले तो आपको यहां से इसको पुश करना है, कहाँ पे, मेन ब्रांच पे, क्योंकि मेन ब्रांच पे आपका फाइनल प्रोजेक्ट है, राइट? और यहां से आपको मेन ब्रांच फाइनल प्रोजेक्ट पुश करना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, कंपेल एंड पुल रिक्वेस्ट, जो यहाँ पे ऑप्शन आता है कंपेल एंड पुल रिक्वेस्ट। कंपेल एंड पुल रिक्वेस्ट में क्या होता है,
कि एज सुन एज यू से कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, तो ये कंपेयर करता है किस ब्रांच के साथ, मेन ब्रांच के साथ, और ये बताएगा कि कौन कौन सी चीजें हैं जो आपकी ब्रांच में अधिक की है और वो ब्रांच में नहीं है, कौन सी चीजों में आपने एडिशन किया है, सब्ट्रैक्शन किया है, एडिशन किया है, एडिट किया है या मॉडिफिकेशन किया है, वो सारा वो कंपेयर करेगा। और उसके बाद वो पुल रिक्वेस्ट भेजेगा। किसको पुल रिक्वेस्ट भेजेगा? आपकी मैनेजर, जिसको भी आप भेजना चाहते हो उसको आप पुल रिक्वेस्ट भेजेगा। अब क्योंकि दिस इज माई प्राइवेट अकाउंट और ये मैं प्राइवेट अकाउंट है, तो हु इज द मैनेजर? आई एम द मैनेजर। तो वो मेल किसको आएगा? वो मेल मेरे को ही आएगा, है कि नहीं? तो इफ आई से कंपेयर एंड पुल रिक्वेस्ट, तो ये बोलेगा कि ओपन अ पुल रिक्वेस्ट, ओपन अ पुल रिक्वेस्ट, ये करेगा पुल रिक्वेस्ट क्रिएट करो। यहाँ पे आपको जो भी मैटर देना है, सब्जेक्ट देना है, तो वो बोल दो आप few files have been added to feature engineering। फिर आप बोलते हो कि उसको बोलते हो कि मैनेजर को बोलते हैं प्लीज रिव्यू, राइट, रिव्यू and if you feel okay please review and push to main, please review and push to main। push to main बोले तो मेन जो आपका प्रोडक्शन वाला जो है ब्रांच, उस पे आप इसको पुश कर दो, प्लीज रिव्यू एंड पुश टू मेन। ऐसा नहीं है कि मेन ब्रांच पे ही आपका फाइनल प्रोजेक्ट हो सकता है आप दूसरी कोई ब्रांच क्रिएट कर सकते हो और वो दूसरी ब्रांच पे आप पुश कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, है कि नहीं? तो प्लीज रिव्यू एंड पुश टू मेन, फिर आप कह सकते हो क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट। और जैसे आप क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट करोगे, देखो एक मेल चला जाएगा, एक मेल चला जाएगा, ठीक है? तो फिर वो मेल में कुछ इस तरह के, एक तो उसको मेल जाएगा और दूसरा उसके गिट वाले अकाउंट पे क्या आएगा, गिट अकाउंट पे कुछ इस तरह के लिख के आएगा, प्रति कंट्रोलर कमिटेड 10 मिनट्स आएगो, प्लीज रिव्यू एंड पुश टू मेन। ये उन्होंने मैसेज भेजा है, मतलब इस तरह का उसने मेल भेजा है और वो बोल रहे हैं कि 2 कमिट्स हुए हैं 7 मिनट अगो, आप देखो मेनी फाइल्स एडेड, और मेनी फाइल्स एडेड में बहुत सारी फाइल्स आ चुकी है और एक कमिट भी किया है चेंज रीड वी फाइल में, ऐसा। तो आप यहाँ पे, वो यहाँ पे जाएगा और इसको चेक करेगा वो क्या है, जो भी यहाँ पे आपको दिखेगा उसको, ये फाइल है, ये फाइल है, ये फाइल है, डिसीजन ट्री नाम की एक फाइल है, वो है, फिर एक डिसीजन ट्री डॉट png नाम की फाइल है, कुछ इस तरह से दिखती है, ये है, फिर ये फाइल है, फिर ये फाइल है, ये फाइल है। लोड डिफ करेंगे तो यहाँ पे उसका डायबिटीज का डेटा भी दिखेगा, और ये पीपीटी दिखाएंगे तो ये एम्प्टी फाइल है, इसलिए कुछ है नहीं तो यहाँ पे अगर पीपीटी होती तो पीपीटी भी दिखती, सारी फाइल दिखेगी यहाँ पे, सारी वो सारी फाइल जो भी उसको दिखेगा। अगर कोई ऐसी फाइल है तो इसको लोड कर देते, इसको मैं म्यूट कर दे, ठीक है? और फिर उसके बाद डायबिटीज के बाद कुल मिला के यही फाइल्स, इतनी फाइल्स थी। और एक कमिट हुई ना, एक फाइल कमिट, और एक फाइल कमिट हुई थी, वो कौन सी थी? वो कौन सी थी? ये वाली कमिट चेंजेस, ये कौन सी कमिट थी? रीडमी फाइल में हुआ था। तो बोल रहा है रीडमी फाइल में मॉडिफिकेशन क्या हुआ है, देखो जो फाइल्स मेन ब्रांच पे नहीं थी वो सारी फाइल उसने वहां पे दिखाई, और जो फाइल्स मेन ब्रांच पे भी है और फीचर इंजीनियरिंग ब्रांच पे भी है उसको वो यहाँ पे कंपेयर करके दिखा रहा है। वो बोल रहा है कि देखो पहले जो है ना पहले आपके पास ये 5th मार्च जैसे का वैसा है, एक लाइन थी 5th मार्च पाइथन बैच ऑलमोस्ट कंप्लीटेड, ठीक है, उसको हटा दिया गया, उसकी जगह ये ऐड की गई है फाइल, और एक और ये लाइन ऐड की गई है, स्पेस ब्लैंक स्पेस ऐड किया गया है, और एक और लाइन ऐड की गई है, प्लस मतलब ऐड, सब्ट्रैक्शन मतलब माइनस, और ये ऐड किया गया, इट वाज अ ग्रेट जर्नी एंड सो मच टू लर्न, स्माइली। तो ये सारी तीनों चीजें ऐड की है और ये चीज कम की गई, तो ये ना मैनेजर को समझने में बड़ा आसान हो जाता है। अच्छा ये किया है क्या कि इसने ये चीज ये एडिट किया है करके, इसने ये चीज घटाई है, ये चीज ऐड की है, ये समझ में आ जाता है। फिर वो क्या करेगा, रिव्यू करेगा, कोड रन करके देखेगा, उसको सही लगता है तो फिर सही है बिल्कुल, रिव्यू चेंजेस, है ना? तो वो क्या कर सकता है, कमिट कर सकता है, अप्रूव कर सकता है, या फिर वो बोल सकता है कि नहीं 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 ये कुछ तो गड़बड़ है, तो आपको मेल डालेगा, रिप्लाई डालेगा, रिक्वेस्ट चेंजेस, सबमिट फीडबैक दैट मस्ट बी एड्रेस बिफोर मर्जिंग। वो बोल रहा है कि नहीं इसमें आपने कुछ तो गलत कर दिया, तो आप वो करो कि इसको वापस चेंज करके भेजो मेरे को, ऐसा बोल सकते। अप्रूव अगर कर लिया उसने तो क्या हो जाएगा, अप्रूव कर लिया तो आपकी तरफ आपको मेल आ जाएगी, हाँ ये हो चुका है करके, इस तरह से। चलो मेल पे भी जाते हैं, वो चेक करते हैं। ओके, लेट मी गो टू मेल। हाँ ये तो काम नहीं कर रहा है मेरा, तो आई नीड टू स्विच टू अनदर अकाउंट, वेयर इज माय प्रतीक अकाउंट, दिस अकाउंट। ओके, so if I come to mail, you will see what you will see। देखो गिटअप की तरफ से मैसेज मेल्स आए मुझे, प्रतीक कनपुरवार 5th मार्च
यू नो क्यों ये मेल किसको आए, आई एम द मैनेजर, एज अ मैनेजर आई हैव रिसीव्ड मेल, अंडरस्टैंड नो, few files have been added to feature engineering, और मैसेज क्या भेजा है प्रतीक ने, प्लीज रिव्यू एंड पुश टू मेन, इस तरह का मैसेज भेजा है उसने। और क्या बोल रहा है, ये वाली जो है ये है पुल रिक्वेस्ट उसने भेजी है, ठीक है, कमिट किए, ये 2 चेंजेस कमिट किए, ये 6 फाइल्स उसने चेंज की है, और ये सारा जो डेटा है वो मेल पे भी आया है, और वही सारा डेटा जो कहाँ पे दिखेगा, वो यहाँ पे भी दिखेगा, वो यहाँ पे भी दिखेगा जहाँ पे हम देख रहे हैं। तो अगर मैनेजर को लगता है कि एवरीथिंग इज गुड, एवरीथिंग इज फाइन, यू नो सब कुछ बिल्कुल सही है, अच्छा काम किया है लड़के ने, तो ये क्या करेगा, ये करेगा मर्ज पुल रिक्वेस्ट, दिस ब्रांच हैज नो कॉन्फ्लिक्ट विद बेस ब्रांच, मर्ज पुल रिक्वेस्ट, ऐसा कर देगा वो। तो मर्ज पुल रिक्वेस्ट, फिर उसके बोलेगा कंफर्म करना है, मर्ज करना है पक्का, तो आप बोल सकते हैं मर्ज करो, ये मर्जिंग इस तरह से। और मर्ज करने के बाद वो ना एक और ऑप्शन देता है, पुल रिक्वेस्ट सक्सेसफुली मर्ज एंड क्लोज्ड। अगर आपको ब्रांच डिलीट करना है तो आप फीचर इंजीनियरिंग वाला ब्रांच आप डिलीट कर सकते हो, क्योंकि काम हो चुका है, फीचर इंजीनियरिंग में जो कुछ भी है वो सब मेन ब्रांच पे आ चुका है। आप फीचर इंजीनियरिंग ब्रांच अभी आपका मतलब बस इट्स जस्ट अ कॉपी ऑफ मेन ब्रांच, so now if you want you can delete a branch, but we are not interested in delete, so fine, so we say commit, well done, and then say comment, that's all। तो अब उसको वेल डन करके एक मैसेज चला गया और एवरीथिंग इज बीन क्लीन। सो अगर आप अभी जाते हो 5 मार्च वाली ब्रांच पे, ओके, एंड इन द मेन नाउ, मतलब ऑफकोर्स फीचर इंजीनियरिंग पे ये सारी फाइल्स तो थी, लेकिन इसके साथ साथ अभी मेन ब्रांच पे भी वो सारी फाइल्स आ चुकी, मेकिंग सेंस। और जो रीडमी फाइल थी जिसमें हमने अभी कुछ तो डेटा ऐड किया, इट वाज ग्रेट टू हैव जर्नी एंड एवरीथिंग, दैट आल्सो इज देयर, मेकिंग सेंस, क्लियर है? Yes. ओके, सो यस, तो इस तरह से सारी चीजें होती। सो नाउ लेट मी आल्सो राइट सम कमांड। सो ये सब हमने क्या क्या स्विच किया ब्रांच को, इसके बाद क्या कर सकते हैं, इसके बाद हम पुल रिक्वेस्ट भी भेज सकते हैं, पुल भी भेज सकते हैं। तो पुल कैसे भेजेंगे, गिट पुल से, ठीक है, और आप लोग गिट पुल और ओरिजिन ब्रांच में, ठीक है, इस तरह से जो भी ब्रांच का नाम रहेगा आप कहोगे गिट पुल ओरिजिन, और फिर उसके बाद आप बोल दोगे वो फीचर इंजीनियरिंग, तो फीचर इंजीनियरिंग की जो ब्रांच है उसका पुल क्रिएट हो जाएगा। उसका पुल किसको जाएगा, उसका पुल जाएगा मैनेजर को, इस तरह से, है ना। और फिर नेक्स्ट थिंग, एक बार उसका पुल चला गया तो फिर आपको तो पता है सारी चीजें, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद वो सारा व्यू करता है, उसको सब अगर ठीक लगता है, इन केस अगर आप मैनेजर हो, ठीक है, आपको आ गया मेल, फिर आप क्या करते हो, आप चाहो तो आप भी कमांड प्रॉम्प्ट से सारा खेल खेल सकते हो। आप बोलोगे मेरा जो जूनियर कमांड प्रॉम्प्ट से खेल, मैं भी कमांड प्रॉम्प्ट से खेलूंगा, फिर आप भी पुल रिक्वेस्ट जो है इस तरह से ये कर सकते हैं। आपको डिलीट करना है ब्रांच, तो आप यहाँ से ब्रांच भी डिलीट कर सकते हैं, डिलीट ब्रांच। तो डिलीट, अगर आपको कोई ब्रांच अगर आपको डिलीट करनी है तो आप ब्रांच को डिलीट कर सकते हैं, गिट ब्रांच /d, और फिर ब्रांच करना, कोई भी डिलीट ब्रांच अगर डिलीट करना। तो अगर वो ब्रांच अगर आप ही ने क्रिएट की है, डिलीट लोकल ब्रांच, तो इसके लिए कमांड है। अगर आपने वो क्रिएट नहीं की, किसी और ने क्रिएट किया रिमोटली, तो उसके लिए कमांड है गिट पुश ओरिजिन //delete ब्रांच, इस तरह से, ठीक है। और मर्ज अगर करना है, आप है मैनेजर, आपको मर्ज भी करना है, तो आप फिर मर्ज कर सकते हैं। तो मर्ज करोगे तो यू विल हैव ओनली वन कमांड, गिट मर्ज और न्यू ब्रांच, मतलब जो भी आपकी ब्रांच है ना, हमारे केस में कौन सी ब्रांच थी, हमारे केस में थी फीचर इंजीनियरिंग, तो आप बोलोगे जो भी आपकी ब्रांच है, जिस ब्रांच को मेन ब्रांच के साथ ये करना है, न्यू ब्रांच, और फिर आप अपनी जो मेन ब्रांच, तो जिसका एग्जांपल क्या रहेगा, गिट मर्ज, और किसको मर्ज करना है, फीचर इंजीनियरिंग को मर्ज करना है, किसमें मर्ज करना है, मेन में मर्ज करना है, इस तरह से।
तो आप जैसे ही ये करोगे तो वो मर्ज हो जाएगा। क्लियर है? क्लियर है? Yes. Yes, sir. इस तरह से। तो लेट्स कम बैक एंड क्विकली हैव क्विकली हैव एन ओवरव्यू अगेन। सबसे पहले हमने क्या किया? वी डाउनलोडेड गिट। हमने सबसे पहले गिट डाउनलोड की। दूसरी चीज उसके बाद हमने क्या की? गिट डाउनलोड करने के बाद गिट को इंस्टॉल कर लिया, गिट सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लिया। क्योंकि गिट अगर वो इंस्टॉल नहीं करते थे तो ये जो गिट है, ये गिट करके आप यहाँ पे गिट चेकआउट और फिर गिट स्टेटस, ये सब क्या होता है? ये गिट वाली जो कमांड है वो रन नहीं होती। इसलिए हमें गिट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना जरूरी है। ठीक है, अब वो तो सॉफ्टवेयर हमने गिट इंस्टॉल करके रख लिया। अब दूसरी चीज क्या है? दूसरी चीज हमने गिटहब अकाउंट क्रिएट कर लिया, राइट? गिटहब अकाउंट क्रिएट कर लिया और गिटहब अकाउंट में हमने रिपोजिटरी क्रिएट कर ली। कौन सी रिपोजिटरी क्रिएट कर ली हमने? हमारा जो न्यू जाके हमने एक रिपोजिटरी क्रिएट कर ली 5 मार्च नाम से। और आप आपके प्रोजेक्ट के नाम से आप रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हो। मे बी इफ यू हैव डन अ डीप लर्निंग प्रोजेक्ट और से एनएलपी प्रोजेक्ट और एनी मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट, देन यू कैन क्रिएट अ मशीन लर्निंग वॉट एवर इज योर प्रोजेक्ट नेम। तो आप वो प्रोजेक्ट के नाम से आप रिपोजिटरी क्रिएट कर सकते हो। रिपोजिटरी क्रिएट होने के बाद नेक्स्ट चीज क्या थी? कोड पे आप आके क्या करोगे? You will copy this link and then you will copy this link and paste where you go to, where do you go? ये विंडोज में आप आते हो वो फोल्डर में, जो फोल्डर में आप आपका सारा काम रखते हो, वर्क बेंच फोल्डर में, ये वाले फोल्डर में आपने यहाँ पे आके आपने क्या किया? कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया था। यहाँ पे आपने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया इस तरह से। और ये कमांड प्रॉम्प्ट में फिर आपने क्या किया? ये कमांड प्रॉम्प्ट में आपने गिट क्लोन, ये सबसे पहली कमांड दी और गिट क्लोन करके आपने ये वाली जो लिंक थी रिपोजिटरी की उसको पेस्ट किया। और जैसे आप इसको रन करते हो तो क्या हो जाता है? आपका जो भी फोल्डर आपने जो रिपोजिटरी वहां पे क्रिएट करी है वो एम्प्टी रिपोजिटरी यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद क्या करोगे? आप इसके अंदर जाओगे, यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करोगे और यहाँ के कमांड प्रॉम्प्ट से अब आप सारी चीजें करोगे। तो अब यहाँ पे आप गिट स्टेटस, तो आपको गिट स्टेटस दिखेगा। ठीक है, आप फीचर इंजीनियरिंग ब्रांच पे हो, इस तरह से आप चलते हो। फिर उसके बाद फीचर इंजीनियरिंग पे अगर आपको कुछ ऐड करना है तो आप क्या करोगे? गिट ऐड। सारी फाइल से ऐड करना है तो हाइफन ऑल या फिर डॉट, इस तरह से। और उसके बाद क्या करोगे? उसके बाद करोगे गिट। नेक्स्ट कमांड कौन सी रहेगी? ऐड करने के बाद नेक्स्ट कमांड कौन सी रहेगी? कमिट। ठीक है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट कमांड कौन सी रहेगी? गिट कमिट के बाद Git push. अगर आपको अब गिट पुश, लेकिन आपको अगर आपकी ब्रांच पे पुश करना है, कौन सी ब्रांच पे? फीचर इंजीनियरिंग वाली ब्रांच पे, तो गिट पुश ओरिजिन और फिर वो वाले ब्रांच का नाम, राइट? कौन सी ब्रांच का नाम? जो भी ब्रांच पे आप पुश करना चाहें, गिट पुश ओरिजिन और फीचर इंजीनियरिंग, इस तरह से। मेकिंग सेंस? क्लियर है? गिट पुश ओरिजिन और फीचर इंजीनियरिंग। तो क्या हो जाएगा? अब कौन सी इस पे पुश हो जाएगा? फीचर इंजीनियरिंग पे पुश हो जाएगा। और फिर एक बार आपका पुश हो गया, आपने सब कुछ कर दिया, आप उसको पुल रिक्वेस्ट भेज सकते हो। देन यू कैन से गिट पुल। और फिर कौन सी गिट पुल, किसका पुल भेजना है आपको? ओरिजिन कौन सा था? गिट पुल ओरिजिन। और कौन सा है वो ब्रांच का नाम? कौन सा था ब्रांच का नाम? फीचर इंजीनियरिंग। ये आप करोगे, भेजोगे। जैसे आप ये भेजोगे तो इसको एक पुल रिक्वेस्ट भेज चला जाएगा और बोला था ये है, ये सब हो चुका है, और एक पुल रिक्वेस्ट चला जाए। जैसे मतलब पुल रिक्वेस्ट चला जाएगा बोले तो उसको क्या होगा? उसका दो चीज जाएगी, उसके गिटहब पे, उसके गिटहब अकाउंट पे उसको ये आ जाएगा कि प्रतीक ने आपको ये भेजा है सर करके। और दूसरी चीज क्या होगी? उसको एक मेल भी जाएगा, कि आपको ये चीजें भेजी गई पुल, गिट पुल करके। अगर आपको एक बार गिट पुल हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है? मर्ज करना है। तो आप कौन सा कमांड यूज करोगे? गिट मर्ज। और गिट मर्ज में क्या रहेगा? दो रहेगी, एक रहेगी फीचर इंजीनियरिंग और दूसरी कौन सी ब्रांच है? हमारी मेन ब्रांच, राइट? तो गिट मर्ज ऑलरेडी अप टू डेट, क्योंकि हमने अभी मर्ज करने लायक कुछ है ही नहीं, दोनों भी जो है बराबर ही है कि नहीं? कुछ चेंज किया ही नहीं है अभी हमने, जो भी करना था पहले कर लिया ना हमने, यूआई थ्रू कर लिया था, आपको याद होगा। तो इसलिए अभी वो कह रहा है कि ऑलरेडी अप टू डेट है, कुछ मर्ज करने का जरूरत है ही नहीं। तो मतलब सब कुछ ठीक है, फिर हम डिलीट कर देते हैं ब्रांच को, क्योंकि अभी दोनों भी जगह कॉपी है। तो डिलीट नहीं, सॉरी, क्या है? डिलीट ब्रांच करने के लिए गिट ब्रांच और /d और कौन सी? फीचर
इंजीनियरिंग, है कि नहीं? तो इसको रन कर लेंगे। कैन नॉट डिलीट ब्रांच फीचर चेकआउट, अच्छा हाँ, क्योंकि अभी हम वही ब्रांच पे, तो यही ब्रांच पे होके उस ब्रांच को डिलीट कैसे करें, ठीक है? तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, गेट चेकआउट मेन, तो मेन ब्रांच पे आ गए, स्विच टू मेन ब्रांच। अब उसके बाद ये कमांड डाल दो, मतलब क्या हो जाएगा, अब डिलीट हो जाएगा। नॉट फुल्ली मर्ज्ड, इफ यू वांट टू डिलीट इट, रन git branch slash delete feature engineering, ठीक है? हम तो डिलीट करना ही चाहते हैं। तो ये क्या हो गया, डिलीटेड ब्रांच फीचर इंजीनियरिंग, ये फीचर इंजीनियर नाम का ब्रांच डिलीट हो चुका है। तो अगर आप जाके यूआई पे देखोगे 5 मार्क पे आके, अगर आप देखोगे तो मेन के नीचे आपको फीचर इंजीनियरिंग नहीं दिखेगा। जरा रिफ्रेश कर लो, अभी भी दिख रहा है। हाँ, ये सच हो रहा है क्योंकि गिट पुश नहीं किया एक बार, और गिट पुश कर लेते हैं। git commit slash m branch deleted, git push। ओके, अब आके देखने को बोल रहे इधर, वो कमिट प्रोग्रेस में दिखा रहा है, प्रोटेक्ट दिस ब्रांच, इसको तो डिसमिस करो। दिस ब्रांच इज वन कमिट बिहाइंड मेन, तो कमिट कर लेते पहले। मर्ज किया था, अच्छा मर्ज रिक्वेस्ट रेज किया था, तो उसमें मर्ज का एक्सेस नहीं मिला, क्योंकि हमने क्या किया, हमने मर्ज रिक्वेस्ट रेज किया था लेकिन मर्ज ग्रांट तो नहीं हुआ था, ठीक है नहीं? तो इसको पहले मर्ज कर लेते। This confusion is because I am only the creator and I am only the manager, जिसकी वजह से दिक्कत हो रहा है। तो ये समझना मुश्किल हो जाता है कि ये एज अ मैनेजर दिखा रहा है कि एज अ एम्प्लॉय दिखा रहा है। Where is 5 मार्च, 5 मार्च में पुल रिक्वेस्ट भेजी है, there aren't any pull request as such, ठीक है? तो मेन ब्रांच में वीव ऑल ब्रांचेस करेंगे, ठीक है? मेन ब्रांच दिख रही, फीचर इंजीनियरिंग दिख रही, एक्टिव ब्रांचेस फीचर इंजीनियरिंग है। चलो इसको हमें नहीं चाहिए, इसको डिलीट करना है, हम डिलीट कर देंगे, और डिलीट हो चुका ही है, ठीक है? और रिस्टोर करना है तो रिस्टोर भी कर सकते हैं। अब इसमें एक बार रिफ्रेश करेंगे, ठीक है? अब हम 5 मार्च में जाके देखेंगे, मेन में तो आपको डिलीट, यहाँ पे फीचर इंजीनियरिंग ब्रांच नहीं दिखेगी। इस तरह से बेसिकली हमने क्या किया, हमने जो भी ब्रांचेस थे वहाँ पे गए, यहाँ पे जैसे एक ही ब्रांच, अगर दूसरी तीसरी ब्रांच होती तो यहाँ पे वो ब्रांच भी होती, फिर उसको यहाँ से डिलीट कर सकते, या फिर आपको दूसरी डिलीट कमांड जो थी वो यूज कर सकते हैं। दूसरी डिलीट कमांड कौन सी थी जो मैंने आपको बताया था, ये यहाँ पे ये वाली, गिट पुश ओरिजिन हाइफन डिलीट और फिर ब्रांच नेम, इससे भी ब्रांच नेम रिमोटली डिलीट हो जाएगी। और फिर मर्ज वगैरह तो हमने किया है, सब कुछ कर लिया इस तरह से, ठीक है? तो दिस वाज ऑल अबाउट गिटहब, ठीक है? इज देयर एनी क्वेश्चन इन स्पेसिफिक इनटू दिस? क्या इस पे किसी को प्रश्न, किसको टिक्का टिप्पणी कुछ है? क्या आपको सीक्वेंस समझ में है? सबसे पहले हमने क्या किया, गिट को डाउनलोड किया, इंस्टॉल किया, फिर उसके बाद हमने गिटहब पे अकाउंट क्रिएट किया, गिटहब पे रिपोजिटरी क्रिएट की, रिपोजिटरी की हमने जो लिंक है वो लिंक को हमने क्लोन किया,
वो फोल्डर में, जो फोल्डर में हमको ये सारा डेटा लेना था, राइट। तो हमारा जो वर्क बेंच है, वर्क स्पेस, जो भी फोल्डर रहेगा आपका, जिसपे आप सारा अपना काम का सामान रखते हो, ऑफिस का आप आपका सब वर्क रखते हो, तो वहां पे आपने क्या किया, फिर गिट क्लोन, वहां पे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन किया, गिट क्लोन किया। गिट क्लोन होने के बाद ये वाला जो फोल्डर था, रिपोजिटरी का जो फोल्डर है, ये वाला फोल्डर आपको वहां पे मिल गया। कहाँ पे मिल गया? यहाँ पे मिल गया। फिर एक बार ये आपको इधर मिल गया, फिर उसके बाद आपने क्या किया, फोल्डर के अंदर चले आए, उसमें अपने फाइल्स ऐड की, और फिर गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश, बीच में गिट स्टेटस चेक कर लिया। फिर और कुछ फाइल ऐड की, गिट ऐड, गिट कमिट, गिट पुश। जब आपको सब कुछ लगता है कि हाँ मेरा 3 दिन का 4 दिन का काम हो गया है, ठीक है, सब कुछ काम वगैरह करके मेरा हो गया, अब ये जो है ये काम बिल्कुल सही हो गया है, इसको मैनेजर ने रिव्यू करना चाहिए और उसको ये करना चाहिए, तो आप करोगे गिट पुल, या फिर आप यूआई से भी जाके पुल रिक्वेस्ट रेज कर सकते हो। ठीक है, सारा काम आप यूआई से भी कर सकते हो, लेकिन हमने देखा ना था कि कमांड से भी कैसे करते हैं। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? Yes. ओके। Yes, sir. हाँ, पूछे, कोई क्वेश्चन था? हेलो हेलो, कोई नहीं? हेलो, बट सर इसको शेयर भी करना होता है ना रेगुलरली, समथिंग मैनेजर ने तो पीछे हाँ, तो वो तो हमने किया जो ना, हमने काम मैनेजर के साथ शेयर किया ना। जब हम पुल रिक्वेस्ट भेज रहे मैनेजर को, तो मैनेजर को सारी फाइल्स दिखती है, उसका एक्सेस भी मिलता है, वो फाइल देख भी सकता है। वैसे हमने वो भी दिखाया, कंपेयर कंपेयर भी होती है, वो नहीं कि कौन सी फाइल कम हुई वो रेड में दिखती है, कौन सी फाइल ऐड हुई वो ग्रीन में भी दिखता है। नहीं, वो आईडी डाल के सर, अभी तो ये एक ही अकाउंट था ना, हम रिक्रूटिंग में डाल के ना वो कुछ आईडी डालना होता है वहाँ पे, यस, तो वो तो कंपनी में होगा। Something. तो कंपनी में कैसा होता है, अच्छा, कंपनी में यू विल हैव द एक्सेस, आई मीन कंपनी का खुद का कॉर्पोरेट ये रहेगा, अकाउंट रहेगा, एंड देन आपका गिट का ये बनाया जाएगा, आपके आपके गिट की ये बनाई जाएगी, क्या कहते हैं उसको, एक्सेस क्रिएट किया जाएगा आपके लिए। तो गिटहब का आपको एक्सेस दिया जाएगा, तो वो एक्सेस पे क्या करोगे, फिर जैसे आपका एक्सेस मिलता है तो प्रोसेस विल बी होल थिंग विल बी सेम, कि आप ऐसे ही करोगे। सर डायरेक्टली जुपिटर फाइल को हम कनेक्ट कर सकते हैं ना गिटहब के साथ में, एनपी एक्सटेंशन के थ्रू, समथिंग लाइक दैट। जुपिटर फाइल को आपको क्या करना है, गिट के साथ कनेक्ट करना है, किसके? हाँ, गिटहब के साथ। गिटहब के साथ। आप गिटहब पे भी फाइल ओपन कर सकते हो, आप IP/WAN फाइल रिपोजिटरी में भी ओपन कर सकते हो। वो तो कनेक्ट तो वैसे ही हो चुका है ना, जब आपने पुश कर दिया है तो कनेक्ट तो वैसे ही हो चुका है। आई थिंक एनबी एक्सटेंशन में कुछ तो भी करना पड़ता है ना। एनबी एक्सटेंशन का इसके साथ कुछ नहीं है, एनबी एक्सटेंशन तो कोंडा के साथ है, वो तो IP/WAN फाइल में आप जो करना है वो कर सकते हो उधर, इसका उसका कोई कनेक्शन नहीं है। अब हमने ना एनाकोंडा के साथ खेला ही नहीं। एनबी एक्सटेंशन जो है वो एनाकोंडा का खुद का देयर इज एन एडवांस्ड फैसिलिटी काइंड ऑफ थिंग, कि आपको कुछ एडवांस फीचर्स उसमें प्रोवाइड कर कोंडा। एक्चुअली हम जो भी कर रहे थे अभी कोंडा प्रॉम्प्ट से कर रहे थे। एनबी एक्सटेंशन में एक चेक बॉक्स दिखा था जिसमें गिटहब था लिखा हुआ, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड। अच्छा, लेट्स ओपन दैट, लेट्स ओपन क्विकली, हैव अ लुक अराउंड दैट आल्सो। एक्चुअली वो क्यों ओपन कर रहे हो, ये ओपन कोंडा ओपन करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे आ जाते हैं एनबी एक्सटेंशंस में। बताओ कौन सा बॉक्स है? गिटहब का समथिंग एक बॉक्स था, आई थिंक। हाँ, just a minute, so I have to check in my saw somewhere. देखो जुपिटर, आपको आप लोग विजुअल स्टूडियो को कनेक्ट कर सकते हो गिटहब से। हाँ विजुअल सर, स्टूडियो को आप AWS से ये भी ना कनेक्ट कर सकते हो। गिट लिस्ट, गिट्स डैश इट, किधर सर, लेफ्ट में, बीच में, राइट में? सर हाँ, ये राइट। गिट लिस्ट, ये ना। यस सर। चलो इसको क्रिएट, इसको गिट लिस्ट को पढ़ते हैं। adds a button to publish the current notebook as a list. ये गिटहब पर्सनल एसेट टोकन समथिंग। अच्छा, ये फीचर भी इन्होंने दिया है क्या? अरे तो बढ़िया चीज है। तो ये तो ऐसा हो जाएगा कि फिर आप जो फाइल इधर से आपके पर्सनल गिट अकाउंट पे ऐड करना चाहते हो कर सकते
है ना। तो जैसे हमारे पास अभी एक आधा फाइल है, समझ के चलो ऑफिस वर्क में assignments.re, और ये assignments.re को हम क्या कर देते हैं, पब्लिश कर देते हैं। एक गिट का बटन आ गया इधर, क्रिएट एडिट गिट लिस्ट, अगर इसको कर दिया, मेक अ गिट लिस्ट ऐसा डिस्क्रिप्शन, ओके जिस्ट इट वेंट रॉन्ग, वाई दादा वाई मेक अ जिस्ट पब्लिक, पब्लिक नहीं करना है, चलो। Hello, sir. Sorry to interrupt in between. हम्म, Actually, Renuka ma'am has also joined us. Okay, so she had a session from 10:30. Is she so? Yes, Okay. it's But already. we are done with Git, ma'am. So we have, maybe she's good to start. सर We एक started लास्ट at 11. क्वेश्चन था, हाँ सर एक लास्ट क्वेश्चन प्लीज। जैसे अगर 3.5 इयर्स का एक्सपीरियंस सर अगर हम शो कर रहे हैं, सो दे वुड रिक्रूटर माइट आस्क नो सी व्हाट पर्सनल प्रोजेक्ट्स यू हैव डन, सो वी नीड टू शो देम ऑन गिटहब, नहीं। देखिए, कंपनी के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो कभी भी आपके पर्सनल अकाउंट पे हो ही नहीं सकते। कंपनी का डेटा भी आपका पर्सनल अकाउंट पे नहीं होता। द वेरी फर्स्ट डे व्हेन यू ज्वाइन अ कंपनी, हाँ नहीं कंपनी नहीं सर, हम अगर सपोज हम मशीन लर्निंग पे वर्क कर रहे हैं, इफ यू वांट टू लाइक स्विच टू डीएल नो, सो ही वुड आस्क कि आपने डीप लर्निंग के रिलेटेड कोई प्रोजेक्ट्स किए होंगे ऑफ कोर्स, सो वी वांट इफ वी लाइक वो अगर देखना चाहते होंगे कि व्हाट वर्क यू हैव डन इन डीप लर्निंग, सो दे वुड आस्क अबाउट द गिटहब लिंक और व्हाट। so they can ask, provided see if you say that I have done a deep learning project in my company, तो फिर आप उनको गिट का एक्सेस दोगे ही नहीं। आप नहीं दिखाओगे कि वो आपके गिट, क्योंकि आपके गिट पे आप क्या रखते हो, जो भी सारे प्रोजेक्ट्स आप कर रहे हो आप आपकी गिट पे भी डालोगे। ये सारे जो प्रोजेक्ट्स आप अभी करोगे एमएल के वगैरह, जो आपके प्रोजेक्ट्स आप रिज्यूम में मेंशन कर रहे हो, आपके गिट के अकाउंट में भी रहेंगे ना वो प्रोजेक्ट्स, है कि नहीं। यस सर। तो अगर आपकी रिज्यूम में जो प्रोजेक्ट्स दिख रहे हैं वो प्रोजेक्ट्स अगर आपकी गिट के अकाउंट पे दिख रहे हैं, दैट इज अ सस्पेक्ट। सो व्हाट शुड नॉट हैपन, अगर ऐसा है कि आपने कोई प्रोजेक्ट जो रिज्यूम पे नहीं डाला है, वो प्रोजेक्ट आपकी गिटहब पे अकाउंट हो सकता, गिटहब अकाउंट पे हो सकता है। आप उसको, वो रिपोजिटरी को आप पब्लिक बना सकते हो और उसका लिंक आप उनको शेयर कर सकते हो। दैट इज ओके। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, यस यस। है कि नहीं। आप वो प्रोजेक्ट नहीं दिखा सकते जो आपने रिज्यूम पे डाला, क्योंकि प्रोजेक्ट जो आपने रिज्यूम पे डाला है वो आपने कंपनी में किया है। अगर आपने कंपनी में नहीं किया है, समझ लो इफ समवन इज फ्रेशर, then he has not worked in company and he has given some 3-4 resume पे 3-4 प्रोजेक्ट्स उसने डाल दिए रिज्यूम पे, तो फिर then all those 3-4 projects he can show on Git also. But if he was an intern somewhere where he had worked and shown that project, then he cannot show those projects, right? Yes. ठीक है, चलो, so we will take a pause here and thank you so much for your time and concentration. Okay. Thank you very much. And I wish you, and I wish you all the very best and good luck for your future. Hope to have the good news from you very soon again. Yes, sir. Yes, sir. Thank you. Yes.